Hello and welcome to the first event of 2021 by Decoders Club. My name is Utkarsh Kumar Singh and I am the coordinator at Decoders Club. I will be glancing you through today's event, which is the Cyber City, an exclusive event on cybersecurity by Tech Hack Technologies. So, in today's event, you will be briefed on how to get your career started in cybersecurity, where you will be told about the different domains of cybersecurity and also how to get a job in this domain and many more things about cybersecurity. Next, the instructor will show you practically how to hack into a machine and many more cybersecurity fundamentals. So I urge you all to stick with us throughout the event to take part in a small quiz which we will provide in the end. So you will receive the participation certificate only if you complete the quiz. And the top winners will also be rewarded with a special prize from Tech Hack Technologies. So you all must be wondering about all the posters and the messages flooded over WhatsApp and social media. And I'm pretty sure you would have come across this poster in the past 2 weeks. So let me remove the curtain from this mystery. Tech Hack Technologies is the very new education partner of Decoders Club, and most of our future events will be sponsored by them, in which they will provide us with free resources in the cybersecurity domain. TechHack is an ed tech startup which was founded around a year ago. As you can see on the screen, our guest speaker, Mr. Rhythm Jan, who is the founder of TechHack Technologies, his aim is to provide the best-in-class cybersecurity education to students. He has guided more than 2,000 students till now and has delivered more than 50 seminars and workshops. Next, we are going to tell you more about CyberCity and what CyberCity is all about. So over to you, Divya. Hello everyone, my name is Divya Shukla. I cordially welcome you all to this event. So as Utkarsh said about TechHack, our collaboration with TechHack Technology. So what TechHack is actually providing us, I'll be glancing you through that. So TechHack is providing you an opportunity to get connected with one of the best and one of a kind communities of hacker and infosec aspirants to get regular guidance, opportunities, hands-on sessions, and that too from industry experts. You'll be getting various resources like competition, hackathons, internships, and it's a revolutionary step to bring all these aspirants under one umbrella. And all these things are provided to you for free at zero cost. Like you don't have to pay anything. You just have to join our community that is on Discord. So switching the next slide. Uh, Utkarsh. Okay. These are some of the benefits that I found is listed on your screen. You can glance through them. So the benefits are not only limited to this. CyberCity will provide you a platform where you can meet hackers across the globe. You will be getting access to premium online courses. You would be getting 30 plus domain-based channels to skill up your knowledge, then voice channels to connect with the fellow aspirants, weekly mentorship sessions conducted by the best brains of THT, regular jobs and internship postings, keynotes, monthly competition, hackathons, prizes, giveaways, and several other opportunities that too at free, and you don't have to pay anything for this, I repeat. So next. You must be wondering how can you join this community. So you just have to join us on Discord. We have a server, Tech Hack Technologies has a server named THT CyberCity. There you can either you can just take a screenshot of this. When you'll be scanning this QR code, you will be directed there. Also, we are providing the link to the channel in the comment box. You can also join it from there. Next. When you will be joining the channel. So these are some of the when you'll be joining the server, these are some of the important channels that you must look after. So under the resources channels, you will be getting all the benefits that have been mentioned.
you can be getting you'll be getting resources that is up to 10,000. Then under the job section, you will be getting various opportunities related to jobs, internships, and infosec, and everything for free. I'm repeating that frequently. Next. So this poster briefs everything about what CyberCity actually is. This poster will also be updated on the various social media handles of Decoders. You are requested to follow those, and the link again will be there in your chat box. Next. So if you are planning to join us, you can contact us anytime. Any coordinator or any member of the Coders Club or GFG SRM GPC is willing to help you for the same. For Discord related issues, you can contact Sahil for specifically. All the important contact numbers are given on your screen. You can take a screenshot of this page as well. And now I'd like to hand over the session to respected sir. So Mr. Rhythm Jain, who will be conducting the session hereafter. Over to you, sir. Hello everyone, welcome to the very first event from Decoder X Tech Hack Technology, that is getting started with cybersecurity and practically seeing how we can actually hack into a machine. Okay, so without having a further ado, let's get started. I'll be just sharing my screen, so just do let me know if you people are able to see my screen or not. Okay, It's visible, sir. yep, it's visible, right? Yes, sir. Okay, fantastic. So let me just take you through this. Sorry, I'm not I, but my laptop is not supporting it, but no issues. We'll continue like this. Okay. So once again, I welcome you all to the very first premium webinar series from Tech Hack Technologies and Decoders Club, that is getting started with cybersecurity and practically seeing how we can actually hack a machine. Before that, let me just introduce myself, who I am. And I am Rhythm Jain. I'm the founder and CTO of Tech Hack Technologies. Tech Hack Technology is basically a cybersecurity institution where we train students in various domain of cybersecurity. Till now, I have mentored, I have guided more than 2,000 students in cybersecurity domain. I have co-founded, I have been the CTO of SafeHack Securities as well. I have worked in so many companies, and recently I worked with Requesty. Requesty is a European-based cybersecurity company, and I worked there as a cybersecurity specialist. So, yeah, enough about myself. Now, moving to the webinar, what we'll be doing in today's webinar, what outcome we'll get out of this webinar, and what all things you will be able to see in this webinar. So firstly, I am assuming that you people are absolute beginners. Okay, so this webinar is for the people who are absolute beginner in cybersecurity. Even if you're not, even if you're intermediate, so you will be learning few of the stuff which I guess you didn't know beforeward. Okay, so yeah, now, firstly, we'll be seeing what cybersecurity actually is, and then we'll look what are the job opportunity, because obviously I know you people are in your colleges and your end goal is either to get a job in cybersecurity domain or something similar to that, right? Now, if getting a job is not your end goal, might be possible some of you are there who want to do masters from abroad or even from India, then I'll be telling you from where you can do your masters in cybersecurity and how you can make your career in cybersecurity. After that, after having 7 years of experience in cybersecurity, I have condensed the process of becoming a cybersecurity expert. Okay. I, frankly speaking, get a lot of messages on my LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta, everywhere, just asking how I can become a ethical hacker, how I can start my career in cybersecurity, how I can get my first job as a cybersecurity specialist. Okay. So we'll be witnessing the roadmap which I have created after having 7 years of experience in cybersecurity. So I'll be sharing that with you. And if you strictly follow that, I can assure you that you will be having a great career ahead in cybersecurity. Okay.
Now, after that comes the practical part, and yeah, the fun part of cybersecurity. Will be having an introduction on 5 phases of hacking. These 5 phases of hacking are must. Doesn't matter what you are hacking, how you are hacking, you have to follow these five basic phases of ethical hacking. Okay. After that, we'll actually see how we can hack into a system, how we can actually hack a machine. Now, what do I mean machine by the term machine? I'll be telling you in future when we'll be seeing ahead. Okay. So yeah, moving to the term, what is cybersecurity? But before that, I'll be continuing the whole session, half of it in Hindi, half of it in English. So it will be like a mixed up session. Okay, so just bear with me, क्योंकि यार वो बीच बीच में ना समझाते समझाते हिंदी निकल ही जाती है ना. तो चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड. हाँ भाई. So see, what do you actually mean by the term cyber security? Anyone जो कि यहाँ पे जानता है what cyber security is? कोई बोलना चाहेगा, The कोई मैसेज में बताना चाहेगा? protecting our protecting our devices from various attacks and various other devices. Like our data should not be leaked to them. या फैंटास्टिक. या तो देखो क्या होता है, nowadays we are connected to internet, है ना. and once we are connected to internet, ये मान के चलो कि privacy is a myth. जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, योर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू दी सर्वर्स एंड नोड्स, है ना. बट क्या होता है, ये तो गई प्राइवेसी की बात, है ना. अब आता है सिक्योरिटी वाला पार्ट. सिक्योर करने का मतलब होता है कि यार ये जो मिलीशियस हैकर्स होते हैं या फिर क्रैकर्स कह सकते हैं हम उनको, these are the people who are sitting there just to steal your data, just to perform any malicious activity, and to protect our devices, protect some organization, or help someone to stay secure. हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सीखते हैं कि what should we do to protect an asset so that it cannot get hacked. Okay, now condensing the definition of cyber security, let me tell you what is cyber security. So securing anything that is basically connected to the internet is cyber security. Doesn't matter that is the mobile phone that is in your hand, the laptop you are working on, the router that is at your home, or any IoT device like Alexa, Google Assistant that you may have, the server that is there in your computer lab, anything that uses internet requires security, and cyber security is all about it. Okay, तो देखो आजकल तो यार लाइक कार्स भी इंटरनेट इनेबल्ड आती हैं. लाइक एक अभी कौन सी आई है, MG हेक्टर, राइट. सो MG Yes. हेक्टर वाज अ कार जो कि IoT इनेबल्ड है, इंटरनेट इनेबल्ड कार, है ना. So you can just unlock the car using your mobile phone. IoT है, obviously internet से connected है, तो you can control your car just from your phone. Quite fascinating, right? ऐसे ही आजकल तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, होम अप्लायंसेस आ गए, इवन वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, आपकी LED लाइट, सिस्का LEDs, है ना. सो आजकल मैंने देखा है, एक एड देखी थी, उसमें क्या था कि यू कैन जस्ट चेंज द कलर ऑफ योर LED बल्ब यूजिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम योर फोन. सो दिस इज ऑल्सो डन यूजिंग इंटरनेट. जो भी चीज इंटरनेट पे कनेक्टेड है, एवरीथिंग नीड्स टू बी सिक्योर, है ना. एंड साइबर सिक्योरिटी में हम सारी चीजों को सिक्योर करना सीखते हैं, है ना. वो बात अलग है कि यू कैन नॉट लर्न each and every stuff in cyber security in just one go, so you have to give yourself a start, a basic start, जहां से आप शुरू करेंगे एंड जहां से आप पहला स्टेप रखेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी करियर का. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म साइबर सिक्योरिटी. नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सेम है क्या? एनीवन? Guys, you can unmute yourself and answer because we have disabled the chat. Yeah. So anyone who would like to give There their is a input? difference. Okay, Sir, and the what's difference is that cyber security is actually protecting your device, but ethical hacking is actually trying to hack into your program or something to see if it is safe enough.
Okay, so yeah, you are 80% correct. So basically सर क्या मैं होता है? Yeah, sure. Please go ahead. सर साइबर सर सिक्योरिटी एक तरफ एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी सर एक तरीके से एक साइबर एक सिक्योरिटी डिफेंडिंग साइड हो गया और एथिकल हैकिंग एक तरीके से अटैकिंग साइड हो गया. Okay, somewhere you are wrong. Yeah, another one. सर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग आर टर्म्स. साइबर सिक्योरिटी मींस सिक्योरिंग योर डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट Yeah. that may cause due to hackers. So now I'll tell you what do you actually mean by the term cybersecurity and what do you actually mean by the term ethical hacking, है ना? तो देखो यार, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट से दैट साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग आर सेम, राइट? व्हाट इफ आई से कि एथिकल हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? हाउ? लेट मी टेल यू. सो क्या होता है बेसिकली कि इन ethical hacking, ethical hacker, mind it, I am adding the term ethical hacker, okay? So we'll come to it why I'm adding the term ethical over there. So what happens is ethical hacking mein the person is only concerned about breaking the security, to hack into a machine, to hack into a device, okay? He or she does not care how we can secure the device, how we can secure the machine. The person is only having a mindset to hack inside the machine, to break the machine. Whereas cyber security specialist kya karta hai? The person have all round knowledge of attacking as well as defending. ठीक है ना? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आप ये नहीं कह सकते कि डूड आई डोंट नो हाउ टू हैक इनसाइड अ मशीन, आई कैन जस्ट सिक्योर अ मशीन. व्हाई? बिकॉज until and unless you don't know how the person have breached the data, how a person have hacked inside a machine, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा how you can secure the same, right? तो becoming a cyber security expert is quite hard. Why? Because आपको attack करना भी आना चाहिए, आपको defense करना भी आना चाहिए. Rather in ethical hacking, you just only worry about hacking inside the system, not the securing part of the system, right? So this is the basic difference ki ethical hacking mein, when we are talking about the offensive side of security, just to break the security, तब हम बात करते हैं ethical hacking की. But when we talk about attacking, that is offensive plus defensive part of security, तो हम बात करते हैं cyber security की. Okay, so cyber security के अंदर ethical hacking आता है, where we deal only for the attacking side of security. Okay, so I hope it is clear. Now एक और टर्म होता है, एक्चुअली एक नहीं ज्यादा टर्म होते हैं, let me tell you. एक तो होता है हैकर, है ना? So hacker is a person who hacks the system. Okay, अब यहाँ पे हैकर को अपन डिवाइड कर देते हैं तीन डिफरेंट कैटेगरी में. कैटेगरी तो बहुत सारी होती हैं, बट इन ब्रॉडर वे वी जस्ट क्लासिफाई देम इनटू थ्री कैटेगरी बेस्ड ऑन द इंटेंशन फॉर व्हाई दे हैक. ओके, तो क्या होता है, इफ आई एम हैकिंग फॉर गुड, लाइक मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मान लो आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, एंड माय एम इज टू हैक द कंपनी सो दैट मैं पहले हैक कर लूं, ताकि मैं डिपार्टमेंट को बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे हैक करा, अब इस पाथ को आप सिक्योर कर दो, सो दैट नो अदर पर्सन आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दैट कंपनी कैन हैक अस. ओके, तो मैं ये कर रहा हूँ अच्छे इंटेंशन के लिए, और मैं उस कंपनी को, वो जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी, उसको बता भी रहा हूँ कि आई हैव हैक्ड बट एथिकली, और अब आप उसको सिक्योर कर लो, ताकि मैंने तो अच्छे के लिए करा, हो सकता है कल कोई और बुरे के लिए करे एंड आपका लॉस हो जाए, तो मैंने अच्छे के लिए करा, मैंने कंपनी को बताया. सो आई एम अ एथिकल हैकर because I am doing each and everything after getting the permission of the organization, after getting the permission from the person of which I'm hacking the system, है ना? ये तो हो गया ethical hacker. Ethical hacker are termed as white hat hacker, है ना? because वो जितने भी काम करते हैं वो सारे सफेद होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना? अब आते भाई ये काली करतूत करने वाले लोगों को, है ना? मतलब ऐसे खुरापाती लोग काली करतूतें जो करते हैं, they are termed as black hat hacker. ठीक है ना? तो ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं? दीज आर द पीपल हु जस्ट हैक फॉर बैड पर्पस एंड देयर इंटेंशंस आर बैड, एंड वो इलीगली करते हैं. जैसे मैं अगर कर रहा हूँ किसी सिस्टम में एक हैक कर रहा हूँ, एंड आई हैवंट आस्क्ड फॉर द परमिशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन
जहां पे मैं हैकिंग परफॉर्म कर रहा हूँ उसने मेरे को ऑथराइज नहीं करा है कि आप करो ये, बट इवन दो आई एम डूइंग इट, so I am doing it illegally, okay, without permission, so I'll be termed as non-ethical hacker and moreover a black hat hacker. अब देखो भाई, ब्लैक हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकर ना सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ भाई आई एम अ ब्लैक हैट हैकर सिटिंग इन अ डार्क रूम एंड परफॉर्मिंग ऑल माय हैकिंग, लाइक कोड करते जा रहे हैं, हुडी पहने, एकदम चश्मा वश्मा लगाए हैं, इस साइड में कॉफी का मग है, बियर की बोतल नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है. इफ यू आर अ ब्लैक हैट हैकर, डू रिमेंबर एक ना एक दिन पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, ठीक है. सो डू नॉट एवर ट्राई टू बिकम वन. हमेशा एथिकल हैकिंग की सोचो, कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू द लीगैलिटीज, एंड हर एक चीज जो आप करो वो लीगल अथॉरिटीज की परमिशन के बाद करो. ओके ओके आई गेस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो स्क्रीन का टाइम आउट हो गया, सॉरी. Yeah, just a second. वो आ जाएगी. After it, now comes the category of the third type of hacker. अब तीसरे टाइप का हैकर कौन होता है? It is termed as grey hat hacker. Any idea? अब black hat हो गया, white hat हो गया, अब तो बताइए तो यार कि grey hat hacking क्या होती है? दोनों के बीच में, सब बीच में लीगल. Wait. Moderator, pick up one person जो बोलेगा. मैं बोलो. Raise your hand, I will unmute it. वो लीगल भी होता है और इलीगल, मतलब दोनों तरीके से वो काम करता है. ओके, लाइक ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सही है ना. मैं बताता हूँ क्या होता है. ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं वो इलीगल काम भी नहीं करते, लीगल काम भी नहीं करते. दीज आर द पर्सन जो कि किसी का बुरा भी नहीं चाहते बट किसी का अच्छा भी नहीं चाहते. दे हैक फॉर सम अननोन रीजन, है ना. मान लो कि भाई मैंने किसी से ना एक कंपनी है XYZ कंपनियों से परमिशन तो नहीं ली हैक करने की, एंड आई हैव डन माय हैकिंग ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, बट मैंने उनको कोई हार्म भी नहीं करा. ओके, बस मेरे को मजा आ रहा था, मेरे को अपनी स्किल्स टेस्ट करनी थी, तो आई जस्ट डिड माय हैकिंग पार्ट. मैंने ना किसी का नुकसान करा पर किसी का अच्छा भी नहीं करा, तो आई विल बी टर्म्ड एज ग्रे हैट हैकर. ओके, तो ये होते हैं बंदे जो कि ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, जो कि ना किसी का नुकसान करते हैं बट किसी का फायदा भी नहीं करते. दे जस्ट हैक टू शोकेस देयर स्किल्स. ओके, तो चलो, आई होप ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड व्हाइट हैट हैकर इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. Now, moving further to the big question, that is how to become a hacker, है ना. तो भाई ये नहीं कह रहा कि ये मतलब ऐसा है कि दिस इज द ब्रह्मास्त्र, इसको पढ़ लो, इतना तुम्हारा सिलेबस है एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल हैकर. नहीं, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है कि उसकी स्टडी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? एनी रीजन फॉर दैट, है ना. बताओ. लाइक एक कोई अपने पास, चलो मैं मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, है ना. यू आर इन योर 4th सेमेस्टर, तो आप 4th सेमेस्टर का पढ़ोगे, स्टडी ओवर. देन 5th सेमेस्टर का पढ़ोगे, स्टडी ओवर. 6th सेमेस्टर का पढ़ोगे, स्टडी ओवर. 4 साल की बीटेक होती है. ऐसे यार 4 साल की साइबर सिक्योरिटी क्यों नहीं होती? भाई 4 साल का आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया, नाउ आई एम कॉलिंग यू ऑलराउंडर जिसको सब कुछ आता है, एंड यू नीड नॉट टू अपडेट योरसेल्फ. ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड्स. क्योंकि चीजें रेगुलर अपडेट हो रही, सिक्योरिटी बारे में टेक्नोलॉजी चेंज होती है. ट्रू, दैट्स ट्रू. ऐसा इसलिए होता है every time they use different techniques to break into पूरा होता है. हर एक दिन एक नई वल्नरेबिलिटी आ रही होती है, हर एक दिन एक नई वेबसाइट, एक कंपनी, एक सर्वर, एक मशीन, एक नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, राइट. सो यू कैन नॉट से कि भाई अब मैंने 4 साल हैकिंग सीख लिया एंड दैट्स इट, अब मैं एकदम बादशाह बन गया हैकिंग का. ना भाई, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू कंटिन्यू योर लर्निंग forever, है ना. अब these are some of these steps जो कि मैंने खुद फॉलो करे हैं, एंड once I have came to a conclusion कि हाँ भाई these are the steps जिसको एक beginner या intermediate even as advanced person follow करता है, तो obviously they will feel a big difference or a change in their cyber security career. ठीक है, चलो
I'll just take you through this. तो पहला स्टेप है when you are not aware of anything. मैं तो यहाँ पे कंसिडर कर रहा कि आपने कभी भी कंप्यूटर भी नहीं चलाया. So I'll ask you to learn about computers. Now, what do I mean by learning about computer? Obviously, start from the very basic. Input output devices क्या होते हैं, networking devices क्या होते हैं, hub, switch, router, ये सब क्या होता है ना, सर्वर क्या होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं. इनपुट आउटपुट सिस्टम के बाद आप देखो कि ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करो. बिकॉज यार देखो, साइबर सिक्योरिटी जो है एट लास्ट आपको करनी कंप्यूटर से ही है और कंप्यूटर्स के लिए ही करनी है. बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर ही रहा है ना. जहां ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी प्रोग्रामिंग की गई और प्रोग्रामिंग आपने एक कंप्यूटर के थ्रू करी गई होगी. तो एट लास्ट कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी खासी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. तो भाई अभी आज जाओ 5th 6th क्लास 7th क्लास की एक कंप्यूटर साइंस की बुक उठाओ. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस लाइक स्विच, हब, राउटर, ये सब वगैरह आराम से आपको मिल जाएंगे. वाईफाई, लैन, वैन, मैन, ये सब आपके बारे में अच्छे से कभी आपने जमाने पहले पढ़ा होगा ना, अब आ गया टाइम रिवाइज करने का वापस से. ठीक है, तो देखो नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स. अब उसके बाद बात करते हैं कि यार सेकेंड स्टेप की. तो यू हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या फिर वी कैन से डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना. बोथ मीन्स द सेम बेसिकली. तो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज? द रीजन इज सिंपल. व्हाई? बिकॉज कोई भी चीज जिस पे आप हैकिंग करोगे दैट इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. AI, ML, डीप लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, जो भी है, every technology requires security. There is none of the technology that can sustain in the market without security. जितनी भी टेक्नोलॉजी पास्ट में आई है, जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट में है और जितनी भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आएंगी, each technology requires security. हर एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है. साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट इट. ठीक है, सो जाओ जाके एक्सप्लोर करो कि भाई कौन कौन सी एक्चुअली टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें सीखना है. ऐसा नहीं कह रहा कि जस्ट जाओ आज तो ML घोट के पी जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रट लो बेहतरीन चकना, बट हैव अ बेसिक आइडिया कि भाई AI है, ML है, IoT है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो होता क्या है ये, ताकि कल को आपसे कोई बंदा बोले कि यार आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन जो कि क्लाउड सिक्योरिटी में हो, तो आपको पता तो भाई क्लाउड सिक्योरिटी के पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, राइट. तो इसीलिए आई सजेस्ट यू टू लर्न अबाउट, टू स्टडी अबाउट, टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. ठीक है, नाउ आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपने सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में सीख लिया. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग. Why so? Because यार जो भी डेटा जा रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, आप मुझे देख पा रहे हो. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पीस एंड बिट ऑफ डेटा इज गोइंग थ्रू सम ऑफ द नेटवर्क, है ना. नेटवर्क में पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, ये सारी चीजें आती हैं, है ना. तो इन सब के बारे में आपको आना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज IP एड्रेस, व्हाट इज MAC एड्रेस, व्हाट आर द डेटा पैकेट, व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज रिस्पांस, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ो, है ना. नाउ आफ्टर दैट, ये तो हो गया बेसिक नॉलेज. अब आ जाते कड़वे सच पे, है ना. भाई सच ये है कि अगर तुम विंडोज चलाते हो तो हो गई तुम्हारा, भाई हो गया, तुम बंद कर दो अपनी हैकिंग करना. व्हाई? बिकॉज यार देखो एक सिंपल सी बात है, विंडो ओपन सोर्स नहीं है, लिनक्स ओपन सोर्स है. सबसे बड़ा डिफरेंस, लिनक्स आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, विंडोज को नहीं कर सकते. जितनी वर्सटैलिटी आपको लिनक्स देता उतनी विंडोज नहीं देता. जितना परमिशन का चक्कर आपको विंडोज में रहता है उतना लिनक्स में नहीं रहता. एंड लिनक्स यू हैव अ टर्मिनल से यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर सिस्टम कर्नल, जबकि आपका विंडोज ये फीचर नहीं देता until and unless you open your PowerShell. ठीक है, so just forget about Windows and get your hand dirty with Linux. अभी आप देखोगे तो ये जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, this system is completely Linux. like मैंने अपना Windows तो छोड़ ही दिया, so this system is Linux. और Linux में अब मेरे को हो गए 5-6 साल आराम से हो गए शुरू करते करते. शुरू में मैंने जब हैकिंग शुरू की थी तो I started with कहाँ से,
आई स्टार्टेड ऑब्वियसली फ्रॉम विंडोज, बट फिर सूनर रियलाइज यार विंडोज तो कोई काम की नहीं है भाई, है ना। एंड फॉर द सेम रीजन कि विंडोज कोई काम की नहीं है एंड इट हैव सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, जितने भी हैकिंग टूल्स हैं वो सारे के सारे लिनक्स के लिए बने हैं, ना कि विंडोज के लिए। हाँ, देयर आर टूल व्हिच आर मेड फॉर विंडोज, बट इवन दो उनकी परफॉर्मेंस जब आप चेक करोगे तो वही परफॉर्मेंस आपको लिनक्स में बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू विंडोज, ठीक है। सो फॉर एथिकल हैकिंग एंड फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, आप कहोगे कौन सा लिनक्स मैं डालूं, बिकॉज ऑब्वियसली लिनक्स से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सो देखो क्या होता है कि यू कैन यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अब ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं टूल्स जो कि आपको एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में नेसेसरी है, एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है काले लिनक्स। आई होप एवरीबडी ऑफ यू हैव heard about this term काले लिनक्स, एंड करंटली मैं अपना काले लिनक्स ही रन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको मैं अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूज कर रहा हूँ, एंड जो वो सिस्टम है वो है उबंटू फोस्टर फॉसे, है ना। आई टेल यू मैंने ऐसा कैसे करा, है ना। सो या कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, जब आपने इतना सब कुछ सीख लिया है ना, और नहीं सीखा, इफ यू आर स्टिल वरिंग कि यार कहाँ से सीखूं, तो हमारे पास आ जाओ, है ना। तो ज्वाइन टेक हैक्स सीसीआर प्रोग्राम। अब ये सीसीआर प्रोग्राम क्या है, अपने चैट बॉक्स वगैरह में देख लीजिएगा, व्हाट इज सीसीआर प्रोग्राम। इट्स साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर प्रोग्राम, जहां पे आई विल बी टेकिंग यू फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द एडवांस लेवल इन साइबर सिक्योरिटी। जितनी भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये 10 स्टेप मैं पर्सनली उसमें मेंटोर करके हर एक बच्चे को वो सारी चीजें समझाता हूँ, सिखाता हूँ, है ना। सो या आफ्टर दैट, coming to the sixth point, explore all the fields in cyber security। तो क्या होता है कि यार एक आपने बज़वर्ड के बारे में सुन लिया, हाउ मेनी ऑफ, जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बग बाउंटी, रेज योर हैंड फास्ट। Sorry to interrupt, sir. We are having some questions in the chat box. So, if you allow, can we ask them now or shall we take it later? Just a sec. ये 10 step करने के बाद I'll come to the question, because उसके बाद we'll do the practical part. Okay? Okay. चलो, तो हाँ भाई, एक सेकेंड, लेट मी सी कितने लोग हैं जो कि बग बाउंटी के बारे में कभी किसी ने सुना है, जानते हैं। ओके, यस सर, सुना है। सुना है, वाओ, फैंटास्टिक, या एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली आई एक्सपेक्टेड क्या, राइट। हाँ, सो इसके अलावा और कुछ सुना है क्या साइबर सिक्योरिटी में किसी ने, बग बाउंटी के अलावा? वेबसाइट हैकिंग, बग बाउंटी, इसके अलावा और कौन कौन से डोमेन के बारे में सुना है यार आपने, बताओ जरा। malware analysis, penetration testing and malware analysis। चलो, आज खुलासा करूंगा मैं कि साइबर सिक्योरिटी है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार एक्चुअली फील्ड्स कितनी है ना। जो भी स्टूडेंट मेरे पास आता है उसको मैं एक ही सलाह देता हूं कि भाई देखो, तुमको ये तो सीखना है, अब क्यों सीखना है इसका रीजन दे दो। एंड 90% ऑफ द पीपल फेल टू गिव मी अ वैलिड रीजन कि व्हाई दे वांट टू लर्न दिस डोमेन। प्रॉब्लम ये है कि दे हैवंट एक्सप्लोर्ड एनी। उनने बस एक चीज सुना, उनका दोस्त कर रहा था, किसी की बाउंटी देख ली लिंक्डइन पे, एंड दे हैव जस्ट कम कि अब मुझे भी यही सीखना, आई विल आल्सो मेक मनी आउट ऑफ इट। बट डूड, ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्टली गो एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। टेक हैक में पहला स्टेप जो हम लोग लेते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में, वो यही होता है कि भाई सारे डोमेन्स के बारे में हमको बच्चों को सिखाना है, एंड आफ्टर दैट बच्चे ही बताएंगे कि अब किस में इंटरेस्ट है। दैट मेक्स अ परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। विदाउट दैट, अगर आप एक डोमेन विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर डोमेन, अगर आप एक में जंप कर जाते हैं, वन डे यू आर गोना फेल। चलो, आफ्टर सिक्स्थ स्टेप, कमिंग टू सेवेंथ वन, आपने सारे डोमेन एक्सप्लोर कर लिए। नाउ इट्स योर टाइम टू चूज वन डोमेन आउट ऑफ देम, है ना। एक्सप्लोर करते करते आप देखोगे कि यार आपका ना जो इंक्लिनेशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो एक डोमेन की तरफ ज्यादा है, एंड दैट इज द डोमेन दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इनटू, एंड दैट इज द डोमेन इन व्हिच यू हैव टू मेक योर करियर, ठीक है। उसके बाद वो डोमेन पता लग गया, स्टार्ट योर कोर्स स्टडी इन दैट डोमेन, इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। जी तोड़ मेहनत करो, है ना। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यू कि आप एक से ज्यादा डोमेन नहीं सीख सकते, बट शुरुआत में सारे डोमेन एक्सप्लोर करो, उसमें से एक पकड़ो, एक सीखो। जब आपको लगे कि यस यू आर रीच टू दी एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल ऑफ दैट डोमेन, फिर दूसरे डोमेन पे आ जाओ, दूसरा डोमेन ऐसे ही करो, फिर तीसरा डोमेन, बट बीच में मत छोड़ो यार किसी भी चीज को, समझ रहे हो। अदरवाइज क्या है ना कि ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, ये बिना ज्ञान वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
बिकॉज आधे अधूरे ज्ञान से ना, देखो आप अपने आप को बिगिनर भी नहीं कह सकते, आप अपने आप को एडवांस पर्सन भी नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट रह जाओगे। इंटरमीडिएट रह जाओगे, आपको आता तो था बट याद सा नहीं आ रहा, नो वन विल गेट गिव यू अ जॉब आउट ऑफ इट, है ना। तो अच्छा खासा उस डोमेन के बारे में सीखने के बाद ही दूसरे डोमेन में जंप करना। ओके, नाउ जब आपको सारी चीजें आ जाए, ओनली आफ्टर दैट जंप टू इंटर्नशिप्स। व्हाट पीपल डू, भाई साहब मैं पागल हो जाता हूँ लिंक्डइन पे देख के कि यार ठीक है बंदा मतलब उसको कुछ नहीं आता, still the person is asking for an internship in cybersecurity. I'm like, dude, first get some knowledge, get some area of interest in which you are, फिर उसके बाद आना इंटर्नशिप के लिए। ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स आर मेंट टू गेट अ लर्निंग एक्सपीरियंस, अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, बट उसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए ना। ओनली आफ्टर दैट यू कैन पॉलिश योर स्किल्स। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी हम पॉलिश क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ना। तो पहले थोड़ा बहुत सीखो फिर इंटर्नशिप पे आना, राइट। आफ्टर दैट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने फर्स्टली बोला भी था, नेवर एवर स्टॉप योर लर्निंग। हमेशा सीखते रहना। जिस दिन आपने अपनी लर्निंग बंद कर दी, समझ जाओ आपका साइबर सिक्योरिटी करियर खत्म, ठीक है। सो नेवर एवर स्टॉप योर लर्निंग। सो दिस वाज द 10 स्टेप्स जो कि आपको अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है, तो फॉलो करना पड़ेगा। एंड मैं अपना ही आइडिया दे रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी में जितना भी मेरा ट्रेनिंग डिवीजन है, जितने भी मेरे बच्चे हैं, सबको मैं यही सिखाता हूँ, सबको मैं यही सिखाता हूँ। एंड नाउ दे आर डूइंग रियली गुड, सम ऑफ देम हैव इवन गॉट देयर जॉब्स एंड सम ऑफ देम आर इवन वर्किंग विद द इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो यू कैन रिलाई ऑन माई 10 स्टेप्स टू बिकम अ हैकर, कि भाई इनको फॉलो करने के बाद जब उनकी जॉब लग सकती है, वो गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, व्हाई डोंट यू, व्हाई कांट यू, है ना। तो हाँ चलो अब आते हैं भाई, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ सिक्योरिटी, बट इसके पहले लेट मी जस्ट टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम मी। सो एक सेकेंड मैं आता हूं, जरा खोलने दो मेरे को, एक सेकेंड। Actually, the chats are disabled, so I'll be telling the questions, some of it. So अच्छा चैट्स Akash आर is डिसेबल, asking, ओके yeah, जस्ट स्पीक। no, they can send to the moderator. Okay. So Akash is asking, is Linux same as Ubuntu? See Akash, what happens is, देखो एक होता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ना दैट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स, है ना। अब लिनक्स के ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, तो उबंटू इज वन ऑफ देम। उबंटू इज अ डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी लिनक्स के एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए, जैसे मान लो कि आपका डेबियन हो गया, रेड हैट हो गया, स्पिन हो गया, सो बहुत सारे ना ब्रांचेस हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि उसके अंदर भी सब ब्रांचेस हैं एंड दे आर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक डेबियन बेस्ड की अगर हम बात करें तो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका उबंटू आ जाता है, काली लिनक्स आ जाता है, पैरेट ओएस आ जाता है, राइट। सो सी डिफरेंस नहीं है उबंटू और लिनक्स में, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू आपका, ओके। So yeah, I hope Okay. it's clear to Next you now. question is, what is difference between decoding and encrypting? Decoding and encrypting, अच्छा ठीक है। So यार decoding and encrypting में दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। Encrypting का मतलब होता है कि मान लो मेरा एक मैसेज है, Hi, I am Rhythm. So I will just obfuscate the message ताकि क्या हो कि भाई वो कोई इंटरमीडिएट जिस तक वो मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए था वो उसको पढ़ ना पाए, है ना। ओनली द डिजायर्ड पर्सन जिसको मेरे को वो मैसेज भेजना सिर्फ वो ही पढ़ पाए, तो मैं उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दूंगा, एक ना हाइड कर दूंगा। तो हाई आई एम रिदम को मैंने हाइड कर दिया एक रैंडम मैसेज से जो कि है ABCDIJLN Z12 कुछ भी, जिससे कि ना जो ओरिजिनल मैसेज है वो हाइड हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट एनक्रिप्शन इज। एनक्रिप्शन बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। सो दैट इज क्रिप्टोग्राफी। अब डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं तो डिकोडिंग की जो भी चीज एनकोडेड है उसको डिकोड करना। एनकोडेड का मतलब कि भाई आपका एक मैसेज था, उसके ऊपर सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, डेप्थ में जाएंगे तो कुछ अलग ही सेंस निकलता है इस बात का, बट सिंपली आपको समझा रहा हूँ अभी कि डिकोडिंग में आप क्या करते हैं, एक मैसेज है उसकी एनकोडिंग कर दी ताकि वो ओरिजिनल मैसेज छुप जाए। नाउ अब मैं रिसीवर हूँ, रिसीवर एंड पे वो मैसेज आया एंड नाउ आई विल जस्ट रिमूव द लेयर ताकि मेरे को ओरिजिनल मैसेज पढ़ते में आ जाए।
That is what decoding is. Yeah. Next question, please. Next question is by Aman. Is brute force attack illegal if we are trying to crack our own password? सी इट डिपेंड्स कहाँ पे कर रहे हो. अगर वो मशीन आपके लोकल होस्ट पे होस्टेड है तो आपको तो जो करना वो करो, नोबडी केयर्स, है ना. पर अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कर रहे हो, जैसे फेसबुक पे कर रहे हो, जीमेल पे कर रहे हो, ऑल दो अपने अकाउंट पे कर रहे हो, बट आप उनके सर्वर पे लोड बढ़ा रहे हो ना, दैट विल बी इलीगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is quite funny. If we become hackers, so can we hack one of our currently connected device right now? जूम में यार देखो, वल्नरेबिलिटी हर एक चीज में रहती है. जस्ट द मैटर इज कि आप पता कर पाते हो कि नहीं पता कर पाते हो, राइट. तो जूम में भी वल्नरेबिलिटी थी एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज वल्नरेबिलिटी जिससे कि अटैकर कैन जंप इनटू एनी मीटिंग, है ना. तो हाँ, ऐसी वल्नरेबिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जिससे कि आप कहीं पे भी घुस सकते हो, किसी की भी डिवाइस में घुस सकते हो. बट डूड, दैट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक. इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ नॉलेज. तो आई विल से हाँ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि हर दूसरा बंदा आके कर लेगा. Next Okay, one. there are very less jobs or unstable jobs in cybersecurity field. What are your views about it? Absolutely wrong. This is absolutely wrong. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जिसमें 2013 से लेके 2020 तक 350 टाइम्स जॉब बढ़े हैं एंड 2020 से लेके 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि दिस नंबर इज गोना डबल एंड जॉब्स 700 टाइम्स बढ़ जाएंगे. एंड आपको सुन के हैरानी होगी कि जितनी जॉब रिक्वायरमेंट है, जितनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की इंडिया में रिक्वायरमेंट है, हम उसका आधा भी अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. समझ रहे हो? सो दिस इज द डोमेन जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, बथेरी है. बट द थिंग इज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि आपको आना चाहिए. व्हाट पीपल से यार फ्रेशर्स को साइबर सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिलती. कैसे नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है. नॉलेज तो रखो, स्किल तो रखो, है ना. सब देंगे जॉब. स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, नो वन इज इवन विलिंग टू गिव यू एन इंटर्नशिप. Are you going to hack using Metasploit framework to hack a machine by Vasik? Okay, Metasploit की अगर जरूरत पड़ेगी तो we'll look into it as well. Otherwise, देखता हूँ मैं. अगर फ्यूचर में लगा कि यार we have to do it using an exploit that is there in Metasploit, I'll use Metasploit. Otherwise, I'll use some other tool as well. चलो. So, Akshay is asking what programming language is required to get into cybersecurity. No programming language is required to get yourself in cybersecurity. Although when you will be at your intermediate or advanced level, तब आपको अपने tools, अपने exploit, अपनी scripts बनाने के लिए programming language सीखनी जरूरी है. उसके लिए you can go for Python, you can go for Ruby, you can go for Perl, you can go for PHP, you can go for C++ as well. JavaScript भी ठीक ही है ना. So you can choose any programming language that you are comfortable Ishan is with. asking. Yeah. Go ahead. Yeah, Ishan is asking what is payload? What is payload? Payload is just a piece of code या फिर just a query that you inject in an input field. Yep. Another one. Vyom is asking, I'm sure you know about the latest WhatsApp updates. They accessed all the data of the user this time. What is the alternate of WhatsApp? Signal. Move to Signal. I'll to move to Signal in couple of days. Just I need to back up my data from WhatsApp because आजकल बहुत data WhatsApp पर पड़ा रहता है. So I'll just back up my data from WhatsApp and I'll just delete my account from WhatsApp and I'll completely switch to Signal. Yep. Okay, guys, I think we should be continuing with the session because we have a lot of questions pending. So we'll try answering it after the session gets over. Okay. Sure. I assure you, एक भी क्वेश्चन unanswered नहीं जाएगा, भले मेरे को 10 बजे तक क्यों ना बैठना पड़े. बैठना, just be there with me. मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा. चलो. So let's see what are the different domains of cyber security. अभी कुछ ने कहा था malware analysis है, किसी ने कहा था web application pen testing है, किसी ने कहा था कि कुछ और है. So let me tell you कितनी domains है cyber security में, है ना. चलो देखते हैं हम. Let me tell you कितनी domains है. अब
I don't know if this chart is clearly visible to you or not. If not, मैं बता देता हूं. जितने भी आपको ये सेल दिख रहे हैं, this is one single domain of cyber security. अब सोच लो भाई, इतने सारे डोमेन्स हैं, इतना सारा सीखने को है, इतना सारा, मतलब जब इतने सारे डोमेन्स, इतनी सारी जॉब्स भी होंगी ना, so how you can say कि जॉब अपॉर्चुनिटीज साइबर सिक्योरिटी में कम है? नहीं, बहुत है, बहुत है ना. तो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू फ्यू ऑफ देम. जैसे कि ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स मेन ब्रांच, यहां से जाते हैं. मेन बता रहा हूं मैं. ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट comes under red teaming या फिर offensive side of security. Offensive side of security में you do penetration testings, you do vulnerability scanning, और यहाँ पे आप basically you think about hacking inside a system. Okay, rather इस साइड आते हैं. If we come on the yellow part of the light yellow part of the web, तो ये होता है defensive side of security, SOC, SIEM and prevention techniques, detection, protection, firewalls. तो यहाँ पे हम secure करते हैं, patch करते हैं vulnerabilities को. Now, if we come over the dark yellow part, तो ये होता है थोड़ा theoretical. These are some of the frameworks and standards, policies which each and every organization have to follow. है ना. जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स तो बहुत करते ही होंगे, राइट? तो कभी देखना ऑनलाइन पेमेंट पेज पे जो आपका गेटवे है, वहां पे नीचे लिखा रहेगा, एक टिक मार्क लगा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा PCI DSS फ्रेमवर्क सर्टिफाइड. कभी ध्यान दिया है उस पर? What is PCI DSS certified? वो कहता है कि yes, PCI DSS compliance and standard में जो भी rules and regulation चीजें दी हैं, जो भी उन्होंने follow करने बोला है, we are following the same. That is why we are secure. तो ऐसी कुछ policies हैं, ऐसी कुछ standard है which everyone have to follow, and वो बनाई जाती है, and the people who do that are known as auditors. Okay. अब आते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे. अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि दीज आर द पीपल हु मेक सिक्योर सिस्टम, हु मेक सिक्योर नेटवर्क, हु मेक सिक्योर वेब, है ना. जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज होती है, जो डेवलप करनी होती है, वो ये लोग करते हैं. फिर उसके बाद में आता है भाई करियर डेवलपमेंट. करियर डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं आप, दिस पार्ट, आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, सो मेनी अदर्स, राइट. फिर आता है गवर्नेंस वाला पार्ट. गवर्नेंस वाले पार्ट में obviously you can work with legalities as well. आप एक साइबर सिक्योरिटी लॉयर भी बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाने वाले बंदे बन सकते हैं. You can work with the government as well, है ना. जैसे कि अभी हमारे एलुमनाई TST के हैं, they are working with government in the auditing part, है ना. They are helping government to stay compliant with the standards. Okay, so threat intelligence में भी आप जा सकते हैं. Threat intelligence is really एक ऐसा डोमेन है जिसके लिए पहली बात तो मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड सेकेंडली अगर आप इसमें जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम ही 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी. ठीक है. सो या दीज वर सम ऑफ द फील्ड. डिटेल में भी हर के बारे में जाएंगे, बट अभी ऑब्वियसली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दिस. सबके बारे में नहीं बता सकता. तो सबके बारे में जानने के लिए, सबके बारे में पता करने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता, यू कैन कम टू TST CCR प्रोग्राम समवेयर और दी other. आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा to have a look on the curriculum and to get yourself registered. So keep having a look. Okay, चलो. तो now coming to the job opportunity. तो भाई जॉब अपॉर्चुनिटी साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट सेक्टर में, पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर, फिर देखेंगे पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई बहुत सारी है. यू कैन वर्क फ्रॉम द C लेवल पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन. तो C लेवल में CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के थ्रू आप काम कर सकते हैं. CTO, the designation on which I have worked in 2 या 3 पता नहीं कितनी, हाँ, but I have worked as a CTO in 2 companies, है ना. So cryptographer, malware analyst, forensic expert, incident responder, SOC analyst, penetration tester, security administrator, security analyst, security architect, security software developer, vulnerability assessor, secure code auditor, network security engineer and many more. तो designation बहुत है, jobs बहुत है, सीखना शुरू कर दो, right? तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि यार आप कहोगे कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट के साथ काम करना है, मेरे को पुलिस के साथ काम करना है, आई वांट टू वर्क फॉर द नेशन, मेरे को तो आर्मी की हेल्प करना है, आई वांट टू कीप माय नेशन सिक्योर, हाउ आई कैन डू सो. अब मैं वो चीज बताऊंगा कि हाउ यू कैन वर्क विद द गवर्नमेंट पार्ट इन सिक्योरिटी. सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइबर सिक्योरिटी में आपको जॉब ऑफर करती हैं. उसके लिए एप्लीकेशंस जैसी प्रोसीजर बहुत सिंपल होती है, सेम एज एनी अदर इंटरव्यू, कि पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा,
फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। नाउ देयर आर सम रिक्वायरमेंट ये लोग मांगते हैं, जैसे कि यू शुड हैव अटेन दिस मच मार्क्स इन योर गेट एग्जामिनेशन, आपको बीई बीटेक करना इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव डन 12th पास, ग्रेजुएशन जो भी है, बट हाँ जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही होता है इनका भी। अब आप पता कैसे करोगे जॉब कहाँ कहाँ पे है? सो दीज आर सम ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक सब डिवीजन है। NCIIPC, NCIIPC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन एंड द गवर्नमेंट, है ना। तो NTRO, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, देन कम्स IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID एंड पुलिस, भाई साहब क्या क्या है ना। फिर आता इंडियन आर्मी। अब आप इंडियन आर्मी के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली भाई, आप बंदूक लेके तो जाने नहीं लगोगे साइबर सिक्योरिटी के लिए आप, है ना। सो यू हैव टू सिट इन ऑफिस। तो इनका जो वो है, एक एजेंसी फॉर्म कर दी उन्होंने इंडियन आर्मी ने, दैट इज नोन एज द डिफेंस साइबर एजेंसी। ओके, वहां पे आप काम कर सकते हो। यू कैन वर्क इन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। फिर यू कैन वर्क इन पुलिस साइबर सेल, यू कैन वर्क इन ICERT. ICERT is Indian Computer Emergency Response Team that comes under Ministry of Electronics and Information Technology. अब आप कहोगे यार इन सब का आपने बता दिया, यहाँ यहाँ काम कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई? पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपको फिल करनी होती है। कहाँ से करोगे? सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी एक वेबसाइट है, उन वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक अपडेट या फिर नोटिफिकेशन का सेक्शन आता है, वहां पे जाओ एंड इजीली जब भी ओपनिंग होगी, जब भी वैकेंसी होगी, आप वहां पे जा सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको अभी जॉब नहीं करनी है, यू आर लुकिंग फॉर सम फर्दर एजुकेशन इन साइबर सिक्योरिटी, क्या आपने सोचा ठीक है बीटेक तो कर ली है मैंने कंप्यूटर साइंस में, बीटेक तो कर ली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट आई वांट टू डू डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो आप कहाँ से करोगे? तो ये देखो, ये जो आपको प्लेसेस दिख रही हैं, ये बहुत अच्छी जगह है। व्हाई? बिकॉज ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड जो होता है ना, उसका मार्क मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे टेक हैक में जो इंस्ट्रक्टर है, हर एक ने यहाँ से पढ़ाई की हुई है। लाइक लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर। हमारे इंस्ट्रक्टर ने बीटेक करी हुई है, फिर उसके बाद में ही वेंट टू यूरोप, वहां से उसने एक मास्टर की, देन ही वेंट टू USA, वहां से उसने दूसरी मास्टर की, देन ही वेंट टू ऑकलैंड, जहां से अब वो PhD कर रहे हैं, एंड 3 ऑफ द डिग्री आर डन इन साइबर सिक्योरिटी। तो उन्हीं ने मेरे को सजेशन दिया कि अगर आपको अब्रॉड जाना है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू परस्यू योर MS या MTech इन साइबर सिक्योरिटी। एंड ऑब्वियसली एट लास्ट टेक हैक टेक्नोलॉजीज फॉर श्योर। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है, सो वी आर देयर फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट। बहुत हो गया थ्योरी, नाउ लेट्स मूव एंड गेट्स आवर हैंड डर्टी एंड हैक आवर मशीन। चलो, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, देयर आर 5 phases ऑफ हैकिंग, है ना। तो दोज 5 phases ऑफ हैकिंग आर रिकॉग्निसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये एक है। फिर आता है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, एंड देन इट कम्स गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। ओके, सो ये 5 चीज आप हमेशा फॉलो करते हो, बिकॉज जब भी आप हैकिंग कर रहे होते हो, सो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, आपको सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई ठीक है, मेरे को सो एंड सो कंपनी में हैक करना है, तो आई हैव टू डू सम रिसर्च कि भाई ठीक है, सो एंड सो कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, कितने ऑफिस हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, सो आई हैव टू डू सम इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आफ्टरवर्ड्स I have to do some scanning and enumeration की, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, now what server they are using, वेबसाइट क्या है, IP एड्रेस क्या है, कहाँ कहाँ पे उनके स्विचेस, राउटर, नोड्स हैं, कौन सा नेटवर्क वो यूज कर रहे हैं, all such thing comes under scanning and enumeration. Over here you see what are the protocols they are running, what are the open ports they have on their server, what are the open ports that are vulnerable, what is the application, what is the operating system. तो ये सारी चीजें आप scanning and enumeration में निकालते हो। After that, उसके थ्रू जो जो ओपन प्लेसेस होते हैं, जो जो आपने पाथ निकाले हैं, जो एंड पॉइंट निकाले हैं, अब आप ट्राई करोगे कि हम उनके थ्रू अंदर घुसे उनके सिस्टम में, तो दैट कम्स अंडर गेनिंग एक्सेस। आफ्टर दैट, एक बार आपने एक्सेस गेन कर लिया, नाउ यू हैव टू मेंटेन, पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी आपको, you have to maintain your access in order to get data from that organization. Okay, so then comes maintaining access.
or we can say post exploitation process. Okay, जब आपने सब कुछ कर लिया, you are done with your hacking, you are done with your job, you are done with your data collection procedure. After that अब आपको सिस्टम के बाहर भी निकलना, और ऐसे निकलना है ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे, कल को कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता नहीं कुछ एबनॉर्मल हुआ था एंड समवन हैज ब्रोक इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको अपने ट्रैक्स, अपने सबूत मिटाने बहुत जरूरी है. ठीक है. सो ओवरऑल हैकिंग कंप्राइजेस ऑफ दीज 5 phases. चलो, तो we'll be looking after कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, and let's come to the practical part. So there is an IP address that I have hosted through a cloud machine. तो क्या है ये कि यार ये एक IP एड्रेस है ना, 10.10.171.245.3333. ये 333 क्या है बाद में बात करते हैं. अभी क्या होगा, जो भी मशीन होगी, जो भी सर्वर होगा, जो भी वेबसाइट होगी, उसका हमेशा एक IP एड्रेस जरूर होगा, है ना. Everything that is there revolves around a IP address, and हमको बस उसी में मतलब है. So I have an IP address. I have 10.10.17.42245. Sorry. Okay. So now let me take you कि हम शुरू कैसे करेंगे. अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में. All I know is single IP address. After that IP address के बाद what I'll do, I'll just open my Kali Linux या फिर Parrot OS या फिर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें सिंपली सबसे पहला स्टेप मेरे को रिकॉनेसेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, फिर स्कैनिंग एंड एनुमरेशन करना है. अब रिकॉनेसेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए मेरे पास सिर्फ IP एड्रेस था, है ना, तो ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता. तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्कैनिंग एंड एनुमरेशन. तब वो IP एड्रेस है. अब IP एड्रेस की स्कैन में मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख सकता हूँ. ठीक है, IP एड्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वर भी होगा. ओके, तो अब सर्वर है तो मेरे को सर्वर पे देखना कौन से पोर्ट्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं. ऑब्वियसली व्हाट आर पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स? पोर्ट्स बेसिकली आर गेट्स दैट आर देयर ऑन द सर्वर, है ना. तो अब वो गेट के थ्रू डेटा आता जाता है, तो आई हैव टू स्कैन कि भाई कौन कौन से गेट्स उस सिस्टम में हैं. तो चलो शुरू कर दें फिर. सो एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि आपको दिखे. ये लो, मैंने ये बढ़ा दिया, फॉन्ट बढ़ा दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए. तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए वी हैव अ टूल नेम्ड एज Nmap. Nmap स्टैंड्स फॉर नेटवर्क मैपर. नेटवर्क मैपर क्या करता है? इट्स बेसिक यूज इज टू स्कैन फॉर द ओपन पोर्ट्स एंड टू स्कैन द नेटवर्क, है ना. तो यहाँ पे मैं सिंपली ये रन करूंगा, यहाँ पे -pn कमांड लगा दूंगा सो दैट टू टेल Nmap कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि होस्ट, मतलब ये जो हमारा IP एड्रेस है, ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है ना. हम इसको बता रहे कि ये ऑनलाइन बैठा हुआ है. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड अ फ्लैग नेम्ड एज -pn. ओके, चलो लेट्स हिट एंटर. ओके, host discovery is stable, all address will be marked up and scan time will be slower. Okay, starting Nmap. ठीक है, स्कैनिंग यहाँ पे शुरू हो गई है. नाउ देखते हैं कि क्या चल रहा है. 44% स्कैनिंग इज ऑलरेडी डन एंड 15 seconds मोर इज रिमेनिंग. ओके, ठीक है. सो अब देखते हैं और कितना टाइम बचा है. यहाँ पे 58% इज डन अगेन. ओके, ठीक है. अब देखो यार, स्कैनिंग भी ना कई टाइप की होती है ना. मतलब एक ये तो सिंपल स्कैनिंग मैंने आपको बता दी. अब क्या होता है कि आई कैन एनहांस माई स्कैनिंग एक्सपीरियंस. कैसे? मैं यहाँ पे कुछ फ्लैग्स यूज कर सकता हूँ जिससे मेरे को और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. यहाँ पे सिंपली ये रिजल्ट तो मेरे को मिल ही रहा है, बट मेरे को ना और अच्छे रिजल्ट चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द कमांड्स ऑफ Nmap जिसके थ्रू मैं एक स्पेसिफाइड स्कैन करता हूँ. सो मान लो कि मेरे को पता है कि ठीक है भाई, ओके, यहाँ पे मेरे को मिल गया, पोर्ट स्कैनिंग हो गई एंड आई हैव कम टू नो कि 1 2 3 4 5 6 पोर्ट ओपन है. ओके, तो 6 पोर्ट ओपन है. यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 FTP पोर्ट, SSH पोर्ट, NetBIOS SSN, Microsoft DS, Squid HTTP एंड DEC नोड्स. ये पोर्ट्स ओपन है. अब मेरे को ये देखना कि यार ये जो पोर्ट का जो सर्विस है इसका वर्जन क्या है. बिकॉज ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर पुराने वर्जन में कोई भी पोर्ट ओपन होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली जाके इंटरनेट पे सर्च करूंगा कि भाई ये है सर्विस, ये है पोर्ट और ये है इसका वर्जन. अब बता दो वल्नरेबिलिटी क्या है. तो आई विल जस्ट सी दी वल्नरेबिलिटी, मैं उसका एक्सप्लॉइट निकालूं एंड आई विल एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी एंड आई विल हैक द मशीन. ओके, सो नाउ आई विल जस्ट हिट अ एडवांस स्कैन. यहाँ पे मैं यूज करूंगा Nmap.
स्पेस -a। पहला -a क्या करता है, ये सारी चीजें बता देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन पोर्ट्स, कुछ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स होती हैं nmap में जिसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हो, तो वो भी रन कर देगा, प्लस पोर्ट का वर्जन भी बता देगा और भी बहुत सारी चीजें बता देगा, है ना। तो लेट्स जस्ट हिट -a वाला स्कैन, ये चल रहा है, ओके, इट विल टेक सम टाइम, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट जब तक वो स्कैन होता है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं एक और स्कैन चलाऊंगा स्पेसिफिकली टू गेट द वर्जन ऑफ द पोर्ट्स। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा nmap -s कैपिटल S, रिमेंबर कैपिटल S, स्मॉल s एंड कैपिटल V। तो ये यूज करूंगा एंड आई विल जस्ट पुट माय IP एड्रेस एंड एज यूजुअल -pn, एंटर। ठीक है, ये भी रन स्कैन हो रहा है, ये भी स्कैन हो जाएगा अपना जल्दी ही। यहाँ पे देखते हैं, ओके, ये भी चल रहा है, यहाँ पे क्या प्रोग्रेस है, 76% इज ऑलरेडी डन। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 35% इज ऑलरेडी डन। तो ठीक है, 76% वाला जल्दी खत्म होने वाला है। टिल देन मॉडरेटर सिर्फ एक क्वेश्चन उठा दो, तब तक अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Okay. Wait a minute. Sir, there is a question that how crucial is the timing while hacking into a machine? Sorry? How crucial is timing while hacking into a machine? Timing, about timing. Timing? Yes, Timing really doesn't matter. मतलब आप पहले हैक करो, बाद में हैक करो, the thing which is very crucial and which matters is कि जब आप हैक कर रहे हो, जब भी आप कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो, तो वो वल्नरेबिलिटी तब तक एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो कि XYZ वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू मैं सिस्टम का एक्सेस लेने वाला था, अब मैं आज हैक करने बैठा और उस ऑर्गेनाइजेशन को उस वल्नरेबिलिटी के बारे में एक हफ्ते पहले पता लग गया, उसने पैच कर ली, अब मैं तो बैठ गया, अब मैं कर रहा हूँ ट्राई, मेरे से हो नहीं रहा, तो आई एम लेट, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी अब पैच हो चुकी है। सो इसीलिए कहते हैं कि जब आपको वल्नरेबिलिटी मिले, जब आपको पता हो कि दिस वल्नरेबिलिटी इज देयर, तो जस्ट गेन एक्सेस थ्रू इट, डोंट वेट। अदरवाइज आप नहीं, 1000 और लोग हैं विच आर सिटिंग ओवर देयर, है ना, तो वो लोग पैच कर ही देंगे। तो टाइमिंग इज क्वाइट क्रूशियल, बट बस यही है, वल्नरेबिलिटी जब तक एग्जिस्ट करती है आप हैक कर सकते हो, जिस दिन खत्म हो गई, वो पैच हो गई, उस दिन यू हैव टू हंट फॉर न्यू वल्नरेबिलिटी। ओके, चलो, तो -a वाला कमांड हमारा सक्सेसफुल रहा एंड उसने अपना स्कैन कंप्लीट करके हमको रिजल्ट दे दिया। सो लेट्स गो कि व्हाट स्कैन रिजल्ट इट हैज गिवन। तो यहाँ पे देखो, पहले हमको बस ये मिल रहा था इतना, अब इसने बता दिया कि वर्जन FTP पोर्ट का है VSFTPD 3.0.3, SSH का वर्जन बता दिया ओपन SSH 7.2 P2P। यहाँ पे इसने एक और चीज बताई कि उबंटू मिल रहा है इसको एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू लिनक्स रन हो रहा है उस IP एड्रेस पे, उस सर्वर पे। ओके, सो नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द SSH होस्ट की। यहाँ पे देखो 139 TCP ओपन नेट बायोस SSN पोर्ट पर इसने बताया कि सांबा वर्जन 3.x to 4.x चल रहा है, एंड सेम गोज विद 445 पोर्ट, यहाँ पे भी सांबा SMBD 4.3.11 उबंटू चल रहा है। ओके, देन 3.28 TCP पे स्क्विड प्रॉक्सी चल रही है जिसका वर्जन है 3.1.52। ओके, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट 3333 TCP ओपन HTTP इस पे चल रहा है अपाची HTTPD 2.4.18 उबंटू। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये चीजें हैं क्या? तो यार देखो, ये ना पोर्ट है, पोर्ट के वर्जन्स हैं ऑब्वियसली, इसीलिए नेटवर्किंग पढ़नी बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो व्हाट नेटवर्किंग इज, आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, ये रिजल्ट मिलने के बाद मुझे पता लगा कि भाई वो जो IP एड्रेस है उसका 3333 पोर्ट नंबर खोलने पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग HTTP। HTTP का मतलब क्या होता है कि समथिंग ओवर द वेब इज प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे बता कि अपाची सर्वर पे एक वेबसाइट रन हो रही है जिसका पोर्ट है 3333।
ओके, नाउ कमिंग टू द मोर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे और कुछ काम की चीज तो है नहीं अभी के लिए। चलो तो यहाँ पे देखते हैं वर्जन, बस हम स्कैन कर रहे थे तो यहाँ पे देखो, जब हमने वर्जन स्कैन करा तो यहाँ पे उसने वर्जन बता दिए ये सारे। ओके, तो एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। हमने पोर्ट स्कैनिंग कर ली, हमको पता चला कि वहां पे एक वेबसाइट है पोर्ट नंबर 3333 पे। ओके, सो हमने आईपी एड्रेस :3333 डाला एंड वी हैव गॉट अ वेबसाइट ओवर है ना। तो अब क्या होगा कि वेबसाइट है, तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट में है तो उसको पता होगा कि यार जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं तो उसका एक फोल्डर होता है एंड फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं और उनके अंदर फाइल्स होती हैं, है ना। तो रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी और उसके अंदर फाइल्स, ये क्रोनोलॉजी होती है। सो देयर आर सम डायरेक्टरी फॉर दैट। अब डायरेक्टरी है तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डायरेक्टरी क्या क्या है उस सर्वर पे, है ना, जो कि वेबसाइट है। सो we'll be doing directory enumeration, जहां से हमको पता लगेगा कि भाई ठीक है ये डायरेक्टरीज, ये फाइल उस सर्वर पे है। ओके, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यू विल गेट सम प्लेसेस, यू विल गेट सम डायरेक्टरी जो कि ओपन है और जहां पे क्रूशियल और सेंसिटिव डेटा, सीक्रेट डेटा छुपा हुआ है, या फिर यू हैव अ पॉइंट, यू हैव एन एंड पॉइंट जहां से आप अंदर जा सकते हो सिस्टम में, है ना। सो चलो उसके लिए स्कैन करते हैं एंड to enumerate the directory, to do directory enumeration, हम दूसरे टूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है GoBuster। अब GoBuster के अलावा भी और सारे टूल हैं, डरबी हो गया और डरबस्टर हो गया, बट फॉर नाउ आई विल यूज GoBuster। ओके, तो GoBuster चलाने के लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले तो देखो अब ऑब्वियसली GoBuster क्या करता है कि उसके अंदर ना हमको एक वर्ड लिस्ट देनी पड़ती है, तो वो ब्रूट फोर्सिंग करता है, मतलब वन बाय वन अपने आईपी एड्रेस, अपनी वेबसाइट के आगे वो डायरेक्टरी का नाम डालेगा और देखेगा कि रिजल्ट क्या मिलता है ना। इनवैलिड हुआ तो वो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर कुछ वैलिड रिस्पॉन्स हुआ तो वो हमको बता देगा कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो फॉर दैट हमको अब वर्ड लिस्ट भी चाहिए जहां पे डायरेक्टरीज के नाम हो, तो काली लिनक्स में ऑलरेडी ऐसी डायरेक्टरीज के नाम वाली वर्ड लिस्ट ऑलरेडी इनबिल्ट आती है। तो चलो उसका पाथ बताता हूँ कहाँ पर रहती है। पहले तो अपन वापस आते हैं, तो एक बार एलएस कर लेते हैं कि हम अभी हैं कहाँ। अच्छा, यहाँ पे इससे बाहर आते हैं जरा, तो लेट्स सी वेयर वी आर। ओके, काली, लेट्स गो और पीछे, एक और फोल्डर पीछे जाते हैं, है ना। तो these are the directory through which I am surfing, and cd is the command through which I am moving forward or backward in the directory listing. तो cd is change directory, ये लिनक्स का बहुत कॉमन सा कमांड है। एंड ls is listing, जिसके थ्रू मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो देख पा रहा हूँ। ओके, चलो तो ls करने के बाद I have come across this, तो यहाँ पे मैं अब एक डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा जिसका नाम है यूजर, USR। तो I'll type cd USR। तो नाउ आई एम इनटू यूएसआर, एंड यूएसआर के अंदर आप देखो तो इतनी सारी सब डायरेक्टरीज और हैं। तो यूएसआर के अंदर आपको जाना है शेयर डायरेक्टरी में, तो सीडी शेयर। नाउ आई एम इनटू शेयर। अब शेयर में आने के बाद मैंने देखा कि भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं, बट इतनी सारी चीजों में से एक चीज मिली जो है वर्ड लिस्ट, मेरे को इसी का काम है। ओके, तो आई विल जस्ट स्विच टू सीडी वर्ड लिस्ट। ओके, तो मैं वर्ड लिस्ट के अंदर आ गया एंड we have डरबस्टर, डरबी, fasttrack.txt, फोन वाईफाई, इतने सारे और भी अभी डायरेक्टरी हैं। तो मेरे को पता है एक नॉर्मल जो अपनी वर्ड लिस्ट है वो डरबी के अंदर है, तो आई अगेन स्विच टू डरबी। अब देखो डरबी के अंदर आई हैव दीज मेनी टेक्स्ट फाइल, और ये जो टेक्स्ट फाइल है ये वर्ड लिस्ट है हमारी, है ना। नाउ व्हाट आई विल डू इज फॉर द टाइम बीइंग आई विल यूज common.txt। common.txt के अंदर जितनी भी कॉमन डायरेक्टरीज हैं उनकी लिस्टिंग होती है ना, उसकी एक पूरी वर्ड लिस्ट है वो। सो नाउ मैं कमांड का यूज करूंगा GoBuster रन करने के लिए, GoBuster स्पेस I have to do directory enumeration, so I'll type dir, and after it I'll type -u to specify the URL or the IP address through which I want to do directory listing. So I'll type http। अच्छा, s नहीं लगाना है बिकॉज हमने यहाँ पे वेबसाइट में देखा था कि यहाँ पे ये आ रहा था, रेड सिंबल आ रहा था, विच मीन्स SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे http बस लगाएंगे, https नहीं लगाएंगे।
/ हमारा IP एड्रेस यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद में we'll also specify the port number and चलो अब आती है बारी वर्ड लिस्ट टाइप करने की। तो -w से we'll specify the word list। अब वर्ड लिस्ट हम यूज करें common.txt। That's it, रन कर दो। ओके, fatal error, unable to connect to the host। अच्छा, होस्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी सी कि क्या दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीलोड। सॉरी, you have used 333 instead of 3333. It's 4 times 3. Oh, ho. Thank you so much. Oh, sorry. Okay, sorry. So I have to use 3333. Thanks for correcting me. 3333। चलो रन कर दें। GoBuster is started। ओके, यहाँ पे इनुमरेशन शुरू हो गया। यहाँ पे देखो, इफ यू कैन सी क्लियरली, प्रोग्रेस में आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई 4615 वर्ड्स हैं इन टोटल, एंड उसमें से अभी 441 ऑलरेडी वो पुट करके देख चुका है। एंड आउट ऑफ दोज इतने 600 700 जो भी है, उसके पुट करने के बाद उसको पता लगा कि ये 3 डायरेक्टरीज हैं जो कि मैच करी हैं, विच एग्जिस्ट ऑन दी वेब सर्वर। हाँ, यहाँ पे स्टेटस कोड करके आपको दिख रहा होगा। स्टेटस कोड क्या आ रहा है? 403। एनीवन रेज योर हैंड। 403 स्टेटस कोड, व्हाट डज इट मीन? कोई आइडिया किसी को? Restricted, permission denied. Access denied, correct, absolutely correct. Access denied होता है वो। Okay, 301 status code, another person raise your hand, क्या होता है? What 301 specifies? Status code 301। चलो मैं ही बता देता। स्टेटस कोड 301 सेज कि इट इज अ डायरेक्टरी, है ना। तो यार हम डायरेक्टरी लिस्टिंग कर रहे हैं एंड 301 ने बता दिया कि इट इज अ डायरेक्टरी। अब जाके चेक करना कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। तो कुछ इनबिल्ट डायरेक्टरीज होती हैं जो कि हर एक वेबसाइट में रहती है। जैसे डायरेक्टरी CSS हो गया, तो CSS में क्या होता है? CSS आप CSS स्टाइल्स, है ना, जो भी CSS कोड होता है वो उस डायरेक्टरी के अंदर होता है। फॉन्ट्स, इट कंटेन ऑल द फॉन्ट दैट आर यूज्ड इन द वेबसाइट। images contains all the images that are used in the website। फिर आता है index.html, it is a web page basically। जो हम ये पीछे देख रहे हैं ना, होम पेज को हमेशा index.html से नेम करा जाता है। फिर आता है इंटरनल, दिस इज क्वाइट सस्पिशियस बिकॉज ये प्रेजेंट नहीं रहता है नॉर्मली हमारे डायरेक्टरीज में, है ना। फिर आता है JS होता है जावास्क्रिप्ट कोड। जितनी भी जावास्क्रिप्ट कोड की फाइल्स होती है वो यहाँ पे आती है। सर्वर स्टेटस इज अ इनबिल्ट फाइल ऑफ अपाची सर्वर। ये जो पहले की 3 आप .ht देख रहे हैं, .htxs देख रहे हैं, .ht पासवर्ड देख रहे हैं, और इनके आगे 403 का स्टेटस कोड है, दैट मींस कि एक्सेस डिनाइड। दीज आर द फाइल व्हिच कैन बी ओनली यूज्ड एंड एक्सेस्ड बाय द सर्वर या फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। सो चलो, हमारा ये स्कैन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टरी लिस्टिंग हमको मिल गई। ये सारी डायरेक्टरीज वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती हैं, एंड आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी आई कैन से कि ये थोड़ी सी एबनॉर्मल मेरे को लग रही है बिकॉज ये नॉर्मली वेबसाइट्स पे नहीं रहती है। तो जो भी डायरेक्टरी आपको एबनॉर्मल लग रही होती है उस पर आप क्या करो, जस्ट कॉपी इट, टर्मिनल करो क्लोज, एंड अपनी वेबसाइट पे उसको ब्राउज करने की कोशिश करो। ओके, इंटरनल चलते हैं हम, क्या मिलता है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो उस इंटरनल ने हमको बताया देयर इज अ बटन ऑफ ब्राउज एंड देयर इज अ बटन ऑफ सबमिट। मतलब ये कुछ अपलोड करने को बोला जा रहा है हमसे, राइट। तो अपलोड करने को बोला जा रहा है, सो लेट्स ट्राई अपलोडिंग सम थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या अपलोड हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लिक ऑन ब्राउज। इज देयर एनी पिक्चर अवेलेबल, या फिर सारा खाली ही है भाई। प्लीज भाई एक पिक्चर दे दो, एक पिक्चर बस। चलो, आई डोंट हैव एनी पिक्चर फॉर नाउ आई गेस। पिक्चर्स फोल्डर पूरा खाली पड़ा है, कोई बात नहीं। तो लेट अस ट्राई अपलोडिंग अ फाइल ओवर हियर। ओके, फॉर द इंस्टेंस हम करते हैं txt फाइल अपलोड।
ओके, तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ txt फाइल फर्स्टली। तो यहाँ पे हम करते हैं test.txt। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल। अब इसको अपलोड करके देखते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज, आई विल जस्ट गो ऑन माय लोकेशन test.txt एंड आई विल जस्ट ओपन इट। ठीक है, ओपन तो हो गई है, यहाँ पे आ गई। नाउ क्लिक ऑन सबमिट and it said extension not allowed. Okay, let's try changing the extension. तो यहाँ पे what I'll do is, मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि यार यहाँ पे क्या होगा कि ये इमेजेस लेगा। अब why I'm thinking कि इमेजेस लेगा, क्योंकि आपने देखा था वहां पे एक डायरेक्टरी थी इमेजेस की, तो आई गेस कि हम वहां से एक डायरेक्टरी जो है इमेजेस, वहां पे हम अपलोड कर सकते हैं इमेजेस। ओके, सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक। मैं अच्छा पीएनजी फॉर्मेट इमेज का होता है। लेट्स ट्राई अपलोडिंग अ इमेज। ओके, तो test.png मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ब्राउज करता हूं मैं एंड यस test.png एंड क्लिक ऑन ओपन, सबमिट कर दो। एक्सटेंशन अगेन नॉट अलाउड। ओके, तो पीएनजी भी नहीं ले रहा। हम ट्राई करते हैं कोई और एक्सटेंशन के साथ। हमारा एंड गोल क्या है यहाँ पे, पता है किसी को? लाइक व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग टू डू। जब भी आप ऐसा कोई सिनेरियो देखो जहां पे आपको कोई अपलोड मिले, यप बोलो। We are trying to like inject some kind of file code so that we can gain access to the permanent like administrator. Exactly. That's what we are gonna do. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेजेस वाला भी खोल लेता हूँ टैब। ओके, ठीक, तो यहाँ पे ये सारी इमेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो अब हम देखते हैं जेपीजी एंड ये ले रहा है पीएनजी एक्सटेंशन। ओके, चलो, तो अब हमारे पास यार कोई इमेज ऐसी तो खास है नहीं है जिसको हम डाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जब हमको पता चल गया कि ठीक है वहां पे जेपीजी और पीएनजी मतलब फोटोज अपलोड करने की फंक्शनैलिटी बस है, तो हम क्या कर सकते हैं? और जैसा कि वन ऑफ यू हैव स्पोकन कि अवर एंड टारगेट इज टू अपलोड समथिंग ओवर देयर, समथिंग मैलिशियस ओवर देयर, जिसके थ्रू हम मशीन को अपने कंट्रोल में कर सके। ओके, वी कैन गेन द एक्सेस ऑफ द सिस्टम। नाउ फॉर दैट व्हाट I'll suggest to do is, जब भी अपलोड फंक्शनैलिटी मिलती है, you should try uploading a shell. What is a shell? Anyone? Shell. What is a shell? Shell is the root access to the operating system. Shell is not exactly the root access of the operating system, but shell is something over which you can type your commands, you can gain access of the system. Now, that does not mean, if I'm saying that you can access the gain the access of the system, that really doesn't mean कि you can get administrative or root access of the system. Okay, आप ये भी हो सकता है भाई कि शेल अपलोड करने के बाद आपको एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिले। ट्रू, तो वहां पे अलग चीज आती है। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन कि ठीक है, you have gained access as a normal user. Now after getting the access as a normal user, you have to escalate your privileges and become a root user, an administrative user. Okay, चलो, तो हम देखते हैं। बेसिकली शेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइंड शेल, एक होता है रिवर्स शेल। अब बाइंड शेल और रिवर्स शेल में क्या डिफरेंस होता है कि भाई बाइंड शेल में जब आप एक नॉर्मल जो शेल होता है, वो नॉर्मल शेल जब आप अपलोड करते हो तो क्या करते हो, आप अपने टारगेट मतलब आपका जो विक्टिम है उस विक्टिम सिस्टम पर रिक्वेस्ट भेजते हो टू कनेक्ट टू दैट शेल, है ना। आपका जो हैकिंग पीसी है उससे आप अपने विक्टिम पीसी पे जिस पे आपने शेल अपलोड करा उस पर रिक्वेस्ट भेजते हो, गेट कनेक्टेड। रिवर्स शेल में क्या होता है, रिवर्स शेल में विक्टिम पीसी कॉन्टैक्ट्स यू। ओके, तो ये चीज होती है। तो ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे एक रिवर्स शेल अपलोड करूंगा जिसके एग्जीक्यूशन पे वहां से मेरे को कांटेक्ट करा जाएगा, एंड आई विल सेट अप अ लिसनर ओवर देयर कि जो भी कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही होगी इसको लिसन करके स्टार्ट कर देगा कनेक्शन। ओके, चलो भाई, सो
व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं एक PHP फाइल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो index.php वाले पेज को हटा दो, इंटरनल पे आ जाओ पूरा। ओके, नाउ क्लिक ऑन ब्राउज एंड shell.php। अच्छा, बिफोर shell.php, ये जो शेल है ये आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा गिटहब पे, है ना। तो गिटहब पे अगर आप जाके टाइप करोगे रिवर्स शेल या फिर सिंपल PHP शेल, आपको आराम से शेल्स मिल जाएंगे। तो ये जो शेल स्क्रिप्ट है इसको हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ता है आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड। लेट मी शो यू क्या होता है। ये होगा अपना डमी शेल, है ना। इसमें क्या करना होता है, रिवर्स कनेक्शन के लिए आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, राइट। आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा ताकि इस आईपी एड्रेस पे वो रिवर्स शेल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे। तो नाउ आई हैव टू find out what is my IP address and how I'll do it. I'll type the command ifconfig. ifconfig command se I'll get to know my IP address, and my network adapter is turn 0, and IP address that I'm getting over here is 10.6.50.205. I'll just copy it and I'll just change this IP address to my IP address. Control V. ओके, एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर, आप पोर्ट नंबर कुछ भी स्पेसिफाई कर देते हो, कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। बट जिस पोर्ट नंबर पे आप अपना रिवर्स शेल डाल रहे हो उसी पोर्ट नंबर पे आपको अपना लिसनर भी डालना पड़ेगा, ताकि जब रिक्वेस्ट उस पोर्ट से आए तो उसी पोर्ट पे सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। सो फॉर द टाइमिंग आई विल जस्ट टाइप 4444 पोर्ट नंबर। ओके, दिस इज द पोर्ट नंबर जो कि कोई भी अभी सर्विस मेरे सिस्टम पे यूज नहीं कर रही है। नाउ लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे कुछ और भी हमको करना है क्या। ओके ओके, अदर देन दैट नहीं, और कुछ चेंज नहीं करना। सो कंट्रोल S टू सेव द फाइल। तो हमारा shell.php हो चुका है अब तैयार। सो नाउ इसको कर दो बंद। shell.php को हम डाल के देखते हैं हमारी मशीन पे। ब्राउज shell.php, ओपन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। व्हाट इट सेज, एक्सटेंशन नॉट अलाउड। अब ये एक्सटेंशन नॉट अलाउड क्यों आ रहा है, एनी रीजन। हम जब एक फोटो अपलोड करने की बजाय कोई और फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन नॉट अलाउड क्यों आ रहा है। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि देयर इज ब्लैक लिस्टिंग और इधर व्हाइट लिस्टिंग ऑफ एक्सटेंशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ब्लैक लिस्टिंग एंड व्हाइट लिस्टिंग, कि भाई ओनली सम एक्सटेंशंस आर अलाउड। मान लो मैंने व्हाइट लिस्टिंग करी है, तो व्हाइट लिस्टिंग में क्या होगा, सारे एक्सटेंशन को डिसअलाउ कर दो, सिर्फ जेपीजी और पीएनजी को अलाउ कर दो, है ना। इन ब्लैक लिस्टिंग व्हाट आई विल डू इज सारे एक्सटेंशन अलाउड है बट पीएचपी अलाउड नहीं है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्टिंग एंड व्हाइट लिस्टिंग? बोथ आर ऑपोजिट। व्हाइट लिस्टिंग में यू ओनली अलाउ a couple of extension, where in blacklisting you disallow a couple of extensions. Okay, चलो, तो ये अपना shell.php तो ले नहीं रहा है, let's try something else, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब PHP shell तो अपलोड करना ही है। For that what I'll do is I'll try changing the extension of that PHP shell, है ना। PHP फाइल वही रहेगी, एग्जीक्यूट वैसे ही होगा, बट आई जस्ट चेंज द एक्सटेंशन सो दैट वी कैन बायपास द ब्लैक लिस्टिंग या फिर कोई भी फायरवॉल जो भी लगाओ तो हम बस उसको बायपास करेंगे। तो लेट मी जस्ट टाइप PHP2। PHP2 मैंने टाइप कर दिया, रीनेम कर दिया, एंड आई विल जस्ट ट्राई अपलोडिंग PHP2 अगर होता है तो, है ना। ट्राई ओपनिंग इट। ओके, सबमिट। अगेन इट सेज एक्सटेंशन नॉट अलाउड। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और एक्सटेंशन हम डाल के देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, एक्सक्यूज मी सर, दूसरा एक्सटेंशन डालेंगे एंड yep sure. So what are we trying to establish by doing all this? We are trying to gain access of the system. We have got an inject point and we are trying to put our shell in a server, in a remote machine that is hosted somewhere around the globe. Okay, तो वहां पे हम हमारा shell डाल रहे हैं ताकि हमको उस सिस्टम का एक्सेस मिल जाए। Got it? Okay sir. We can hide the shell in the PNG file and upload it. हाँ, इसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी, है ना। दैट इज ऑल्सो क्वाइट फैसिनेटिंग कि हम एक
PNG फाइल में एक शेल को अटैच करके भेज सकते हैं, है ना। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, पर उस केस में सीन ऐसा है कि हमको PNG को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी PHP फाइल। वो भी करके देखेंगे अगर इफ वी फील डूइंग सो, है ना। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन में ट्राई करता हूँ, ये थोड़ा नया है, आपको भी नया लगेगा, PHTML, ये ट्राई करते हैं, है ना। तो लेट मी ट्राई अपलोडिंग PHTML एक्सटेंशन ओवर हियर। चलो ओके, लेट्स ओपन इट। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है, ओके, वी हैव गॉट अ सक्सेस मैसेज। तो सक्सेस मैसेज का मतलब कि यार ये जो चीज हम अपलोड कर रहे थे वो अपलोड हो चुकी है अब सर्वर पे। हमारा शेल सर्वर पे अपलोड हो चुका है, अब बस बात इतनी है कि सर्वर से उस शेल को कनेक्शन भेजना पड़ेगा और हमें वो कनेक्शन सुनना पड़ेगा। अब वो जो शेल है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन पे जाएंगे, है ना। उसके पहले व्हाट आई विल डू कि भाई मैं बस अपने हैकिंग पीसी पे एक लिसनर एक्टिवेट कर दूंगा। व्हाट डू आई मीन बाय लिसनर? मैंने बताया था आपको, लिसनर इज समथिंग जो कि कनेक्शन रिक्वेस्ट सुनता है ना। तो वो कनेक्शन सुनेगा कौन? नेटकैट। नेटकैट इज अ लिसनर, ओके। तो नेटकैट विल लिसन टू द रिक्वेस्ट दैट विल कम फ्रॉम आवर रिमोट सर्वर। तो यहाँ पे एक वो होता है, फ्लैग होता है LNVP। अब LNVP क्या है यार? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट फ्लैग, -L, -N, -V, -P, और अल्टीमेटली इनका गोल यही होता है कि गिव अस एक्सेस एंड ओपन अ शेल ऑन नेटकैट, जिससे कि हम वो रिमोट सिस्टम का एक्सेस अपने पास ले सकें, ओके। तो अगर आपको समझना है इन डिटेल कि यार ये LNVP क्या है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टाइप man स्पेस NC एंड हिट एंटर। तो क्या होगा यहाँ पे नेटकैट में हम जितने भी कमांड्स यूज कर रहे हैं, देखो -H, -I, -L, -N, -P, -Q, तो आप सबके बारे में पढ़ सकते हैं, ओके। द कमांड इज man स्पेस आपका टूल NC, ओके। सो नेटकैट पे लिसनर सेटअप करते हैं हम, तो उसके कमांड हमारा NC स्पेस -LNVP स्पेस पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना है कि हम पोर्ट नंबर पे क्या कौन सा रन कर सकते हैं, 4444, ओके। तो चलो लिसनर सेटअप कर देते हैं पोर्ट नंबर 4444 पे, लिसनिंग टू एनी 4444, ओके। चलो अब यहाँ पे जाके हमारा ये अपलोड हुआ है, कहाँ अपलोड हुआ होगा, एनी आइडिया? यहाँ से इमेजेस अपलोड हो रही थी, तो ऑब्वियसली इमेज डायरेक्टरी में जरूर हमारा शेल रिफ्लेक्ट होगा, ओके। सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, कहाँ पे होता है शेल डॉट, अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ, देन यहीं पे देखते हैं कहाँ पे हुआ होगा। ओके, इंटरनल index.php नहीं पता, तो what we'll do over here, we'll just come and we'll just open some random image and देखते हैं ये कहाँ से आ गई। अच्छा, images डायरेक्टरी से ये इमेज हमको दिखाई दे रही है। Now to know the location of the file कहाँ पे अपलोड हो रही है, what we'll do, हम आएंगे हमारे वापस से जहाँ पे हमने डायरेक्टरी स्कैन करी थी ना, हमारी कहाँ करी थी, डायरेक्टरी स्कैनिंग वी डिड ओवर समवेयर, अरे यार शिट, मैंने वो टैब क्लोज कर दिया, चलो कोई नहीं। जब मैंने गोबस्टर में डायरेक्टरी इन्यूमरेट करी थी, तो आपने देखा था वहां पे एक अपलोड्स का भी डायरेक्टरी था, राइट। हम उसी अपलोड को भी तो देख सकते, हो सकता है वहां पे हमारी फाइल गई हो, है ना। तो व्हाट वील डू इज कि हम यहाँ पे इंटरनल्स के बाद जाएंगे अपलोड डायरेक्टरी में, UPLOADS, एंड उसके आगे हम टाइप करेंगे हमारा शेल क्या था, तो हमारे शेल का नाम था shell.phtml, ये था, एंटर, ओके। यहाँ पे अभी कुछ खुलेगा ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पहली बात तो ये कि वो एक कोई PNG फाइल नहीं है, PHP फाइल नहीं है जो कि खुल जाए। पर एज यू सॉ कि हमें लिसनर पे कुछ आउटपुट मिला। व्हाट आउटपुट वी हैव गॉट, लिसनर सुन रहा था पोर्ट नंबर 4444 पे, हमने जैसे ही ये कमांड
ट्रिगर करा, ये यूआरएल डाला, shell.phTML को एक्टिवेट करा, यहां से क्या हुआ, शेल अपना हमारा जो बाइंड शेल है, सॉरी रिवर्स शेल है, वो एक्टिवेट हो गया और उसने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी हमारे आईपी एड्रेस पे, जो हमने आईपी एड्रेस तब चेंज करा था वहां पे, रिमेंबर? वहां पे सुन रहा था हमारा नेटकैट का लिसनर, तो नेटकैट के लिसनर ने सुना एंड इट हैव एक्सेप्टेड द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड नाउ कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब आपको देखना है कि भाई कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, सो यू कैन चेक हु एम आई, www-data। तो यहां से आपको उस रिमोट सिस्टम का सारा एक्सेस मिल चुका है। यू गेट दैट? कि भाई अब सिस्टम तो कहीं और पड़ा है, बट आपने शेल अपलोड कर दिया एंड वो शेल एग्जीक्यूट भी हो गया। तो नाउ अब आपको उस सिस्टम का रिमोट एक्सेस मिल चुका है, एंड दिस इज व्हाट हैकिंग मींस, कि भाई वो रिमोट सर्वर आप हैक कर चुके हो, है ना? आई नो मेनी ऑफ यू विल बी गेटिंग डिसअपॉइंट कि भाई मैंने सोचा था कुछ बड़ा सा होगा, कुछ एकदम फैंटास्टिक सा, मतलब माइंड ब्लोइंग देखने मिलेगा। डूड, जब आपको किसी रिमोट सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है वो ऐसे ही दिखता है ना? आपको ऐसा नहीं कि उसका सिस्टम का पूरा डिजाइन दिख जाएगा या फिर कुछ और चमकीली चीजें दिखेंगी। नो, इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है? तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको, एंड from here you can control the system, the remote system that we were targeting. Okay, तो I hope ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, right? चलो, so this completes our practical demonstration how we can actually hack into a machine. Now अब बताओ, let's take few question, थोड़े से हम questions ले लेते हैं भाई। Sir, there's a question by Rishi Nodial. If we choose to pursue cybersecurity, which type of minimum PC specification would we go with? Okay, मिनिमम पीसी स्पेसिफिकेशन इज अ क्वेश्चन जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी करनी नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव द हाई एंड i7 i9 प्रोसेसर विद 1660 Ti ग्राफिक कार्ड एंड 16 GB रैम एंड 2 TB ऑफ SSD। नहीं भाई, मैं बताऊं अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, मेरा सिस्टम i3 भी नहीं है। ओके, अच्छा, Ryzen 3 के बारे में तो सुना ही होगा सबने, Ryzen 3 i3 दोनों सेम है। Ryzen 3 एक बहुत ही बेकार सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो AMD ने सबसे पहले बनाया था, जिस पे अगर आप एक मतलब विंडोज अगर आप इंस्टॉल करके एक गूगल क्रोम भी खोल लेते हो ना तो अटक जाता है, हैंग हो जाता है। वो वाला प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूं जिसका नाम है AMD E2। यू कैन गो एंड सर्च ऑनलाइन कि AMD E2 कितना बेकार है। 4 GB रैम है सिस्टम की, 500 GB हार्ड डिस्क है, एंड कुछ फैंसी नहीं है, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, कोई SSD नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड उस पर मैं लिनक्स इंस्टॉल करी हूं। अब आप देखो, उबंटू भी चला रहा हूं, उबंटू के अंदर अंदर मैंने वर्चुअल बॉक्स में काले लिनक्स, मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे मैं चला रहा हूं उस बेकार से प्रोसेसर पे। कितने मक्खन चल रहे हैं, है ना? विंडोज डाल लोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी सिस्टम की, बट मैं उबंटू लिनक्स चला रहा हूं तो इट इज सो लाइट कि भाई इतने बेकार प्रोसेसर पे भी विदाउट लैग आराम से चल रहा है, वो भी एक नहीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, माइंडेड, है ना? तो पीसी स्पेसिफिकेशन अगर आप कहते हो कि इज अ हर्डल इन योर लर्निंग, देन डूड आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है, सही बताने वाला नहीं मिला है अभी तक कि आपको करना क्या है ना? तो भाई there's a question by sorry I didn't mean to interrupt. Yeah, there's a question, can we hack Instagram जैसा social media accounts? देखो, इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया अकाउंट यू कैन, बट इट कैन बी ओनली डन थ्रू फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। एंड फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? इट हैपेंस ड्यू टू स्टूपिडिटी ऑफ द यूजर, नॉट ड्यू टू अ सिक्योरिटी इशू इन द कंपनी लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना? तो भाई देयर आर 2-3 वेज। पहला तो आप फेसबुक का सर्वर हैक कर लो, है ना? उसमें वल्नरेबिलिटी निकालो, सर्वर हैक करो, उनके अकाउंट टेक ओवर कर लो। इसमें होगा ये कि आप एक अकाउंट नहीं हैक करोगे, फिर पूरी फेसबुक हैक कर लोगे, तो वो कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन हैक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। या फिर फिशिंग कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि भाई
मैं ना अपना ट्रस्ट एक बंदे पे इतना बिल्ड कर दूंगा कि दैट पर्सन विल गिव हिज आईडी पासवर्ड टू मी। या फिर मैं फिशिंग करूंगा। फिशिंग से क्या करूंगा, मैं somehow I'll create a fake login page of Instagram and I'll send the fake login page to a person and वो उसमें डिटेल डालेगा तो वो डिटेल मेरे पास आ जाएंगी। This is how you can hack Instagram, Facebook or any other social media. But it cannot be done ऐसे कि आप भाई सच में बिना कुछ करे, without user interaction, without victim interaction आप hack कर सकते। No, this cannot be possible until and unless you hack whole Facebook. Okay. Next one. Okay, that made me believe I am a social engineer too. Okay, moving on to the next question. What are SolarWind, Hack, and FireEye by Akshay? Yeah, you can build your trust on anyone, and yeah, it's really hard to build trust. And trusty बेटा तो भाई बहुत पंगे हो जाते हैं। Like trust build करने में सालों साल लग जाते हैं, टूटने में बस it takes just few seconds, right? So yeah, next question please. Yep. SolarWind and FireEye. सोलर विंड एंड फायर आई, ये कैसा क्वेश्चन हुआ भाई? मतलब क्या चाहते क्या? ओके, ब्रीच हुआ था फायर आई, सोलर विंड में ब्रीच हुआ था, फायर आई में ब्रीच हुआ था। So it happened due to a vulnerability, a 0-day vulnerability that got exploited. Okay, तो उसकी वजह से फायर आई में हो गया था। They were using solar winds. So yeah. और Sir, कुछ what are the losses from the new WhatsApp policy? ओपिनियन यार, दिस इज सो इररिलेवेंट क्वेश्चन। बताऊंगा, वो प्राइवेसी का इशू है, वो अपन लास्ट में आराम से मस्त एकदम चिल मार के बैठेंगे, आधे घंटे तक बताऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए आपको। फॉर नाउ अभी बस इतना बोलूंगा, व्हाट्सएप छोड़ दो, सिग्नल पे चले जाओ। इफ यू केयर अबाउट योर प्राइवेसी, अगर नहीं करते हो, आप अपनी सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हो, तो भाई रहो व्हाट्सएप पे, एंजॉय द फीचर्स एंड व्हाट्सएप एप्लीकेशन। Sir, there's a question. Signal versus Telegram. सिग्नल वर्सेस टेलीग्राम, ऑब्वियसली सिग्नल, बिकॉज टेलीग्राम जो है वो एक कंपनी ओन करती है, एंड जब कंपनी ओन करती है एंड वो पोटेंशियल देखती है, तो एनी टाइम दे कैन मोनेटाइज इट। बट सिग्नल इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, वो सिर्फ फंड्स पे चल रही है, पब्लिक फंड्स पे। लाइक क्या कहते हैं कि भाई ओके, हमने उसको डोनेशन दे दिया है ना, हमको बहुत अच्छा लगा ना, आई गिव देम डोनेशन, तो वो डोनेशन पे चल रही है। नो अथॉरिटी, नो बिग टेक कंपनी होल्ड्स सिग्नल, दैट इज व्हाई मोनेटाइजेशन का कोई सीन नहीं है। सिग्नल विल बी फ्री एंड हमेशा प्राइवेसी आपकी वहां पे मेंटेन रहेगी। सो ऑब्वियसली सिग्नल वर्सेस टेलीग्राम में सिग्नल विंस। Aniket is asking, how do we know we are hacked? How do you know we are hacked? Wow, nice question. Okay, I'll tell you how you can come to know that you are hacked, buddy. Okay, so अगर आपको लगता है कि अचानक से आपका डेटा यूसेज बहुत बढ़ गया है, अगर आपको लगता है कि यार आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम अच्छा खासा प्रोसेसिंग वाला चलता था बट अब लैग कर रहा है, all these signs indicate कि you have been hacked. अचानक से डेटा आपका बढ़ जाता है। फॉर दिस रीजन मैं हमेशा अपने फोन में वो जो रहता है ना, बताता रहता है कितने केबी कितने एमबी पर सेकंड आ रहा है जा रहा है, उसको लगाए हुए हूँ, ताकि मेरे को कभी भी लगे कि भाई कोई प्रोसेस नहीं हो रही, फिर भी आई एम हैविंग मोर देन 500 kbps या फिर 1 mbps ऑफ डेटा ट्रांजिटिंग इन माय नेटवर्क, तो मैं अचानक से बता सकता हूँ भाई समथिंग इज रॉन्ग एंड आई विल स्विच ऑफ माय फोन। सेम गोज विद माय लिनक्स। मैं लिनक्स में भी यही चीज करके रखी हूँ कि भाई मेरे को पता लगता है कि ठीक है इससे ज्यादा जा रहा है डेटा, उतना नहीं जाना चाहिए, तो आई विल जस्ट टर्न एवरीथिंग ऑफ, है ना। फोन हीट अप हो रहा है, लैपटॉप बेवजह हीट अप हो रहा है, लैग कर रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यू हैव बीन हैक्ड। देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, बट यू कैन कंसीडर कि आप हैक हुए हो। या How do we break two-factor authentication? It's getting more and more popularity. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अच्छा चलो इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अगर हम बात करें कैप्चा की, तो कैप्चा में क्या होता है यार कि कैप्चा आपका कैसे बनाया गया उस पर डिपेंड करता है, कैप्चा बनाने वाली कंपनी ने कैसे बनाया उस पर डिपेंड करता है। तो कैप्चा इज क्वाइट हार्ड, बट अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ओटीपी आ रहा है तो वो बाईपास किया जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स कि वो कितना सिक्योर है। लाइक लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ टू ऑफ आवर स्टूडेंट, अवी एंड उत्कर्ष। उन्होंने क्या करा था, वो एक हैकेथॉन में गए थे
एंड उस हैकेथॉन में एक बग बाउंटी प्रोग्राम भी था, वहां पर उन्होंने पार्ट लिया एंड वो इंडियन कंपनी ही थी एंड ओवर देयर उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ओटीपी बाईपास कर दिया, जिसकी वजह से दे हैव एक्सेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स की एक्सेस उनके पास आ गई थी। व्हाई? बिकॉज वहां पे लॉगिन में क्या था, साइन अप में क्या था कि आप बस फोन नंबर डालो, आपके में ओटीपी आएगा, ओटीपी सही डालो एंड यू आर लॉग्ड इन, पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। सो दीज टू स्टूडेंट्स व्हाट दे डिड कि उन्होंने विक्टिम का फोन नंबर डाला, ओटीपी विक्टिम के पास गया होगा, दे डू नॉट केयर अबाउट इट, उन्होंने एक फेक ओटीपी डाला एंड they just modified the request and response and they were able to log into to his account, the victim's account, and this is how they took access of all the accounts that were present on the system. हाँ, बस यही था कि जिसके फोन नंबर पता है, जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, they can hack into their accounts, doesn't matter कि वो कहाँ बैठे हैं, ओटीपी क्या है. So yeah, these are some of the things that टेक हैक के बच्चे करते रहते हैं, तो हैकेथॉन्स वगैरह जीतना रहता है, चलता रहता है. Yeah, next one. What is ransomware and how can we detect ransomware? Ransomware. Before talking about ransomware, please do let me know, what do you mean by the term ransom? Anyone? What is ransom? I think the one who asked should answer. Chandan. Yeah. Who is the one who asked? कौन है वो? This guy called Chandan. I think he's there. Chandan, India wants to know what is ransom. चलो नहीं पता, मैं बता देता हूँ. रैंसम म्हणजे फिरौती. ओके, तो रैंसम को बोलते हैं फिरौती. अब रैंसमवेयर क्या होता है कि रैंसमवेयर इज अ सॉर्ट ऑफ मालवेयर जो कि आपके सिस्टम में आने के बाद आपकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा, आपसे सारा एक्सेस छीन लेगा, एंड टू गेट योर एक्सेस बैक यू हैव टू गिव हैकर्स सम सॉर्ट ऑफ फिरौती, रैंसम, है ना. तो एक ऐसा मालवेयर है जो कि आपकी सारी फाइल्स एनक्रिप्ट कर देगा, आपसे सारा एक्सेस छीन लेगा, एंड टू गेट बैक योर एक्सेस एंड टू डिक्रिप्ट योर फाइल दे विल आस्क सम फिरौती, सम रैंसम ऑन अ अननोन बिटकॉइन वॉलेट. बिटकॉइन के थ्रू पे करना होता है आपको, नॉर्मल अकाउंट ट्रांसफर नहीं चलता है. तो ये होता है रैंसमवेयर में कि आपको अपनी फाइल वापस लेने के लिए, आपको वो मालवेयर हटाने के लिए यू हैव टू पे सम रैंसम टू द हैकर्स. या next one. How secure is Knox Samsung? क्या? How secure is Knox KNOX? Knox Samsung. What is Knox Samsung? I think it's by Samsung, I think, or the one who Pranjal is. Sir, it's a security feature by Samsung that comes with premium phones of it and A series phone of it. How it's secure? How much it's secure? वो तो यार डिपेंड करता है, कल को नॉक्स में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई तो नॉक्स को भी बाईपास करा जा सकता है. सो यू कांट से कि एनीथिंग दैट इज मेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस इज गिविंग यू 100% सिक्योरिटी. 100% तो भाई कोई भी नहीं देता है ना. तो देयर आर चांसेस जो जिससे कि नॉक्स भी बाईपास करा जा सकता होगा. ओके, देयर मे बी सम वल्नरेबिलिटी, अभी नहीं तो फ्यूचर में आ सकती है. सो या यू, बट हाँ, सिक्योरिटी के लिए है तो यू कैन रिलाई ऑन नॉक्स बट नॉट कंप्लीटली, है ना. ऐसा भी नहीं कि भाई आपने कहा भाई मेरे में तो सैमसंग है, मैं तो कभी हैक होएगा ही नहीं, मैं तो फाइल भी डाउनलोड करेगा टॉरेंट से, मैं तो कोई अननोन सोर्स से कुछ भी करेगा एंड आई नो आई कैन नॉट बी हैक. तो वो स्टूपिडिटी है. अगर कोई आपको सिक्योरिटी दे रहा है तो इट इज जस्ट हेल्पिंग यू. ओके, वो कोशिश कर रहा है आपको प्रोटेक्ट करने की, बट यू हैव टू बी अवेयर कि आप खुद भी अपनी तरफ से कोई ऐसी स्टूपिडिटी ना कर दो जिससे वो भी कुछ ना कर पाए. ओके, What is bug, threat and vulnerability by Akshay? Bug, threat and vulnerability. Akshay, nice question, but I'll not answer it right now because ये जो question है ये मैंने डाला हुआ है हमारे फॉर्म में, तो अगर मैं यहाँ पे आंसर कर दूंगा तो आप वो फॉर्म का आंसर फिल कर सकते हैं. सो या search about it. चलो, तो बिफोर टेकिंग फर्दर क्वेश्चंस लेट मी टेल यू द फर्दर प्लान्स. तो यार देखो, आज के सेशन के बाद एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यार आप साइबर सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो, हाउ हैकिंग लुक्स लाइक एंड व्हाट ऑल domains are there, what all job opportunities are there, but still you may have
सच प्रॉब्लम कि यार आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, है ना, आपने कहीं से बग बाउंटी का नाम सुना, आप बग बाउंटी सीखने लग गए, बट अभी तक कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, कोई बाउंटी नहीं मिली, आप क्या नाम से कहीं पे किसी और डोमेन में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एंड यू वांट टू स्विच योर करियर टू साइबर सिक्योरिटी। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ये कोर्सेज कर करके छोटे छोटे से जो आते हैं ना 2-2 4-4 घंटे के ऑनलाइन कोर्सेज, इनसे लिया हुआ है ना, you are still searching for internships to get practical exposure, you are unable to find a reliable mentor जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करे, आप जॉब ढूंढ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, आप ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं जो कि अच्छी हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, आप हाई एंड एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। So these are some of the problem which cyber security aspirants face when they are learning. Now, to sort this problem, after my effort and my co-founders and my whole tech hack team effort, हमने 67 days का टाइम पीरियड लेके एक बहुत ही अफोर्डेबल, एक बहुत ही वन प्लेस सॉल्यूशन निकाला है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, and that is known as THT's Certified Cyber Security Researcher Training Program. इसमें क्या है, इसमें we'll be teaching you cyber security live, and that will be taught to you by Cisco certified instructor who have 5+ years of experience in cyber security. I'll be there as your mentor at each and every point of time. You can come to me 24/7 during the training. After that, like हमारे जो बच्चे हैं वो सारे एक बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक TCS, डिलॉयट, इनमें भी है। रिसेंटली हमारे जो अभी रिसेंट बैच निकला था इसके एलुमनाई की प्लेसमेंट्स हुई है, सम ऑफ देम आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एज वेल। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनने साइब्रेरी, नाइका, ऑजस एंड आई डोंट नो और कहाँ कहाँ पे काम करा हुआ है। ओके, सो दिस इज फुल फ्लेज्ड कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीजें हम एक ही कोर्स के अंदर देते हैं, and this is not a course of 2 hour or 4 hour, but it is a course of 125+ hours. Okay, तो अब आप समझ सकते हो 125+ hours आपको सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल एंड लाइव एक्सपीरियंस। तो how one can miss this opportunity, right? So to get the curriculum, to know more about it, हमारा WhatsApp ग्रुप है, वहां पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप चैट पे आप देख सकते हैं, there is a link floating जिससे आप curriculum ले सकते हैं, and you can have a look on the curriculum and the training. If you want to contact me, I'm also there in the group. You can ping me anytime and I'll help you with that. So yeah, these are some of the reviews which our students have given. Moreover, अगर आप मेरा LinkedIn खोलते हैं या फिर अगर आप मेरे को LinkedIn पे follow करते हैं तो you will see so many people posting about their achievement from TechHack, so many people posting about their job that they got from TechHack, so many people have got internships as well, so many people have got so many stuff. Okay, तो भाई 125+ hours of training plus 50+ labs on AWS and IBM, 5+ years of experience वाला बंदा आपको सिखाएगा। You will have access to 24/7 mentor with you। मैं इसके अलावा you will get अच्छा परफॉर्म करते हो ट्रेनिंग में तो you will get internship as well, and internship में अच्छा परफॉर्म करते हो might be possible TechHack की आपको रख ले, है ना। So there is a lot of stuff that we are providing. So to get to know more, just DM me or just fill the form that is floating over there. Yeah, so chalo, it brings us to the end of the program, end of the webinar, end of today's session. To download full curriculum of THTCR program and witness the value we are providing, just click on the link that is provided to you now. Chalo, so सर आपने हैकिंग की जर्नी कब शुरू की थी? मैंने हैकिंग की जर्नी शुरू की थी जब मैं था 6th या 5th क्लास में। और सर कैसे? बस यार मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, टीवी चलती थी, तो टीवी पे ना एक शो आता था व्हाट द हैक, MTV पे।
तो वो देखा भाई, काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर जैसे तैसे करके भाई 2G नेटवर्क अपन को मिला, साइबर कैफे वगैरह पे अपन जाना शुरू करे। 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज लगता था साइबर कैफे का उस टाइम पे। सो तब गए अपन, हैकिंग सर्च कर देता था मैं, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी पता ही नहीं थी भाई तब तो। हैकिंग क्या, बस हैकिंग सर्च करा। तो ये मानो कि आई हैव नो गाइडेंस, मेरे को कहीं से कोई रिसोर्स नहीं था ऑब्वियसली। कोर्सेस देखो तो भाई 50,000, 60,000, 1 लाख, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना। तो इतने 50-60 हजार के कोर्स तो भाई क्या ही करेगा एक छोटा सा बच्चा, राइट। और अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेगा जब उस टाइम पे जहां पे हैकिंग वाज अ वर्ड व्हिच वाज कंसीडर्ड इलीगल। हैकिंग बोलो तो कहता था भाई चोरी चकारी क्या करेगा ये, टेररिस्ट के साथ काम करेगा क्या। तो शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, हैकिंग कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, हैकिंग कर रहा। फिर जब उनको लगा हाँ भाई बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, तो फिर उन्होंने करने दिया फिर मेरे को। बट उनका ट्रस्ट जीतना वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, है ना। बट फिर एक बार हो गया तो चल रहा था मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वहां से फिर शुरू करा भाई। मैंने इतने गूगल सर्च करा ना, इतना गूगल पे मैं रहा हूँ, इतना यूट्यूब में मैं रहा हूँ, इतनी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत ज्यादा घोट के पी जाता था मैं। गूगल बैठा रहता था 1-1 घंटे सर्च करे जा रहा, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा। ऑब्वियसली पता, मैंने टेक हैक बस एक ही एम से शुरू की थी। मैं जब 9th क्लास में था तो मैंने सोचा था कि यार ना मेरे पास नॉलेज अभी कहीं से ऐसी कुछ खास आ पा रही है जहां से मैं गूगल कर करके सीख रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो से सीख रहा हूँ, है ना मेंटोर है, ना गाइडेंस है, ना कोई करियर पाथ पता है, क्या करूंगा मैं। बट करना तो है ही, पैशन तो है ही। तो मैंने उस टाइम पे एक ना डिसीजन लिया था कि जिस दिन मैं सीख गया उस दिन अपनी कंपनी जरूर खोलूंगा और वहां पे अफोर्डेबल एजुकेशन दूंगा सारे बच्चों को जो भी साइबर सिक्योरिटी अपना शुरू करना चाहते हैं। एंड सक्सेसफुली मैंने पिछले साल अप्रोक्स अप्रैल में साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन अपना खुद का सेटअप कर दिया, है ना। एंड बस रेस्ट इज हिस्ट्री। आज तक 2000 लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ साइबर सिक्योरिटी में, एंड दैट इज बिग अचीवमेंट फॉर मी इटसेल्फ। बट या आई वोंट स्टॉप नाउ, अभी तो और को भेजना है, अभी तो और को सिखाना है, और लोग आएंगे और लोग सीखेंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं यार। सो या बस जर्नी अब शुरू हो चुकी है तो हो चुकी है, कर रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ अब तो मैं, है ना। I'd like to thank Rhythm sir for this wonderful session tonight. I hope all the participants learned something new. Thank you Decoders Club for having me over here. It was really a wonderful session with you and I really enjoyed it. So it's the time to say bye bye to this webinar, and that's not the end, that's what I'll say. We'll be there, we'll be meeting again, and we'll have further more sessions, further more webinars combined with Decoder Club and Tech Hack, and also on our Discord server. So once again, thanks a lot for having me today, and I really enjoyed it. I hope you too enjoyed it a lot. Also, जो लोग सच में इंटरेस्टेड हैं इस डोमेन में, प्लीज डू नॉट लीव द व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग क्विज के रिजल्ट्स भी प्रोबेबली वहाँ पे शेयर करेंगे। डिस्कॉर्ड तो आप ज्वाइन कर ही लो, प्लस रेगुलर अपडेट्स भी आपको व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे। अभी 2 ग्रुप्स हैं बिकॉज वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी विल कंडेंस इट इनटू वन एंड आफ्टर दैट वी कैन शेयर द अपडेट्स देयर। सो उस पे स्पैमिंग कम होगी बिकॉज ओनली एडमिन्स विल बी एबल टू सेंड मैसेजेस। आप लोग वहाँ रह सकते हो, ओके। And as I said earlier, अगर हमें significant number मिलता है तो we'll be organizing further more sessions like this. अभी के लिए we are ending the session. If you really enjoyed the session, just tag Tech Hack, Decoders, GFG everywhere. You can upload your certificates as well on LinkedIn. You can tag Tech Hack and Decoders, and we are there. We are looking forward for your positive responses. Okay. So bye everyone. Good night. Good night everyone. Good night sir. Thank you. Stay safe. Good night, आप सर sir. नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप डिस्कॉर्ड Thank you, sir.